first thing that we should understand is history is a subject of humanities, right? Something which is called social sciences. There are two sciences, natural sciences and social sciences, right? Natural sciences have objectivity. What is objectivity? Objective and subjective. Objective means what? Something that doesn't change person to person, right? Thought to thought, ideology to ideology, right? Subjective is something that changes. People have different opinions regarding one single thing, right? Okay. So what is this? This is glass. So every person would say this is glass. Right? Okay. But if I ask you, did you like this glass? You may get different answers. That becomes subjective. The first question was, the answer to first question was objective one. Everybody would say it's a glass. But the moment I change the question, do you like it? Personal preference is coming, right? So in social sciences, you see subjectivity, and we need to understand that. Many a times we come here with that scientific attitude, where things are quite clear, either 1 or 0, true or false. There is no gray area, right? 2 plus 2 is always 4. But यहाँ पे 22 भी हो सकता है, right? So we need to understand that there is, there are diverse opinions in social sciences. Those could be true, all of them simultaneously, right? Then why do we study different opinions? अलग-अलग opinions क्यों पढ़ने हैं फिर? वो इसलिए because different opinions, different perspectives, ideologies give us more and more comprehensive understanding of what we are studying, and that is why those diverse perspectives are needed, right? So likewise, regarding history, the question that I raised, what is history, right? There are different definitions. You can see it here. Different historians and scholars have given different definitions. So Professor Ena says that history is memories of societies. History is memories of societies. Society की कई सारी memories हो सकते हैं ना, right? तो ये थोड़ा सा vague बन जाता है. It's not clear yet as to what they are trying to say. दूसरा, Thomas Carlyle, world history is a biography of great men. So is it only about great men? What about ordinary men? What about other people who are not great? Okay. So again, little bit of having that limited kind of understanding here. Third, history is a dialogue between present and past. This is okay, but again वो सवाल आता है ना कि क्या है फिर? What exactly do we understand by that? So we don't get clarity, though these are so far good definitions, right? Again, every definition gives us something in terms of understanding of history, but we don't get the meaning precisely. वो feel नहीं आता कि exactly क्या बोलना है आपको, right? So we would go to a little bit different understanding of history to make sense of it. Exactly क्या है? Does that mean we are greater than these people? No, right? ये लोग इन्होंने जब भी लिखा है उसके बाद बहुत सारे लोगों ने contribute किया. Different historians have contributed. So based on their contribution, we have now a much better understanding of what that term indicates. History. Okay. So I repeat that question. What is history? One understanding that generally comes out is past, right? But I have raised a question mark here. Is it past? Right? And if we say yes, then another question comes in. What is prehistory? So what is past? Anything that is there in the past tense, right? What has happened already, right? Past जब बोलते हो तो कहाँ तक पीछे जाना? To what extent are we supposed to go back? Big Bang tak? What is Big Bang? Beginning of the universe, is it? So that becomes quite a confusing concept, right? If we say past, then there is another term, prehistory. So does that mean pre-past? And if you're thinking on this line that there is something called pre-past, that is quite incorrect. Past has no limit back into the past, right? And in terms of time. So what is prehistory then? ये सवाल आएगा. और तीसरा एक सवाल है. What is proto-history? So if we consider history only as past, these are confusing questions again. इसके simple answers है. History is not merely past. History is recorded past. History क्या है? Recorded past, right? अब ऐसा है कि everything is recorded today. Big Bang भी recorded है. Geography भी पढ़ते हैं ना हम लोग. We are not talking about today's records. We are talking about records from the past. जो time period आप consider कर रहे हो, वहां से कुछ records मिले हैं क्या? Did we get any records from the time period in question, right? If you're getting some records,
that comes into what is called historical period. किसमें आता है वो? Historical period, right? Okay. So history is a recorded past, and those records would be either written or oral. Records written भी हो सकते हैं और oral. There are many things which come to us from one generation to other generation through oral methodology, right? So either oral records or written records. So वहां से लेकर बोला जाता है कि historical period शुरू हुआ, right? तो records मिलना जहाँ पे बंद होता है ना past में, कहीं एक जगह पे बंद हो जाएगा, right? है ना? तो उसके पीछे का जो हिस्ट्री है, that is called prehistory. Are you getting this? So any time period that goes beyond the recorded past, that is called prehistory. And sometimes you have records. आपके पास कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला है, लेकिन you are not able to understand it. Right? It is not making any kind of sense. There is a word which is used for historical scripts. Script क्या होता है? लिपि बोलते हैं ना उसको. ये script है ना? This is script. लिपि for language. So if you are not able to understand the script of the past, but you have the records, इसका मतलब क्या हुआ? Records है लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा. So that is called proto-history. It is called proto-history. इन तीनों के मैं example देता हूँ in case of Indian history. थोड़ा सा रुक जाओ. So answers are pretty simple. History is recorded past. Again, summary. Record could be either oral or written, right? Period beyond the recorded past from which records are not available is called prehistory, right? A period from which records are available but no meaning can be derived from it. It is called proto-history. Proto का मतलब क्या है? Proto means like. होता है बिल्डिंग का प्रोटोटाइप छोटा सा, right? Like history. Records है लेकिन समझ में नहीं आ रहा. So proto-history. So these are three terms that we come across, right? Okay. Now, is this giving some kind of understanding of the term history? थोड़ा सा better understanding मिल रहा है. फिर भी we are not yet clear as to what is the relation between history and past. थोड़ा सा इतना पता चल गया कि हाँ recorded past is history, ठीक है? तो बहुत कुछ है उसमें, right? बहुतों की शादी हो गई है, बहुत लोगों की डेथ हो चुकी है, बहुत सारे पैंडेमिक्स आ चुके हैं, एपिडेमिक्स आ चुके, क्या क्या लिखना है उसमें? What is to be studied exactly, right? Past, बहुत again उसमें बहुत सारे events है, right? Okay, and that is why to know the exact relation between history and past, you can look at the last content of this slide. History is the bodies of knowledge about the past. Bodies of knowledge about the past produced by historians, right? So what does that mean? Past में जो भी हुआ है वो सब कुछ नहीं पढ़ना है हमने. We are supposed to study the books by historians, as simple as that. ठीक है, okay. Now, इसका एक ये क्यों यहाँ पे बताया गया, उसका reason है. You know, nowadays you are seeing a lot of movies coming up on historical plots, web series, lots of forwards on WhatsApp, social media, and different other platforms. So you're not supposed to believe in them. History is not what, say, Sanjay Leela Bhansali shows, Ashutosh Gowarikar shows, right, and different other people show. History is something that we study in the books. Are you getting this? And that is the belief of UPSC. Huh? So no such talks in the classroom which arise from such platforms. So those are not sources of history. History का source क्या है? The bodies of knowledge produced by historians, right? Okay. Now, past में सब कुछ आता है. Everything which actually happened, whether known to or written about by historians or not. Historians ने कुछ लिखा हो उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं पास्ट में, राइट? देखो, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट, हमारा कोई ना कोई रिलेटिव, उसकी डेथ हो गई, किसी की शादी हो गई, ये सब कुछ नहीं आता हिस्ट्री की बुक में, राइट? इसलिए हिस्टोरियंस ने जो लिखा है ना, वो पढ़ना है हमें, एंड दैट इन अ वे लिमिट्स आवर सिलेबस, otherwise it becomes unlimited. So that is the relation of history with the past. I'm summarizing it now. Summary क्या इस slide का? History is recorded past, as understood by historians. As simple as that. ठीक है, we have to make it simple. Okay. Now, practically speaking, अब जब ये होता है ना कि history, तो ये तीनों component आते हैं. कौन से? Historical period आता है, prehistory आता है और proto-history. Okay. Now, second question is, what do we study in history? What is history we understood? लेकिन हिस्ट्री में क्या पढ़ना है? हमने देखा कि पास्ट को पढ़ना है,
the way historians have written about it, understood it, right? तो कुछ past के है ना टाइम पीरियड्स होंगे, 400 साल का एक टाइम पीरियड, 300 साल का एक टाइम, फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो उसके अंदर क्या पढ़ना है, ये सवाल आता है ना कि व्हाट डू वी स्टडी इन हिस्ट्री। कोई भी एक टाइम पीरियड ले लो, किसका टाइम पीरियड, ब्रिटिश रूल का टाइम पीरियड, उसमें क्या पढ़ेंगे, मुगलों का टाइम पीरियड, उसमें क्या पढ़ेंगे, गुप्त एम्पायर का टाइम पीरियड, उसमें क्या पढ़ेंगे। सो एग्जैक्टली व्हाट आर वी सपोज टू स्टडी इन हिस्ट्री, राइट? वी अंडरस्टूड व्हाट इज हिस्ट्री, अब उसमें क्या पढ़ना है, अलग अलग डायमेंशन है हिस्ट्री के। एक बात समझ लो दैट हिस्ट्री इज अकाउंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्या है वो, अकाउंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम जो भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, इट इज नॉट अबाउट एनिमल्स एंड अदर स्पीसीज, राइट? इट इज अबाउट ह्यूमंस, एंड ह्यूमन लाइफ हैज गॉट सर्टेन डायमेंशंस। बताओ ह्यूमन लाइफ के डायमेंशंस कौन से हैं? देयर इज ए पॉलिटिकल डायमेंशन, राइट? बिकॉज वी लिव इन ए पर्टिकुलर स्टेट, एक गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं ना हम लोग, एक पॉलिटिकल सिस्टम, राइट? पॉलिटिकल डायमेंशन। देन देयर इज इकोनॉमिक डायमेंशन, there is social dimension, there is cultural dimension, right? And that is why in any given time period, this is what we are supposed to study. Politically क्या हुआ था उस time period में, economically what conditions were there, what kind of society it was, and then culture क्या था। समझ में आया? This is what we study in history in any given period, कोई भी time period रहने दो, इसको थोड़ा सा डिटेल में, राइट? So these are the dimensions that we discuss as far as history is concerned. So what do we need to study in history? Political aspect, social aspect, economic aspect, and cultural aspect. Again, when I talk about political aspect, उसमें क्या पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ना पड़ता है किसी भी एक टाइम पीरियड में? टाइप एंड नेचर ऑफ पॉलिटी, type and nature of politics. Today, there are different types of political systems, right? There are authoritarian political systems, democratic political systems, right? Democracy में presidential democracy, parliamentary democracy, right? When you say authoritarian system, उसमें military rule, dictatorship, one party rule, जैसे चाइना में है, communist system. There are number of types today in terms of political system, right? Theocratic भी होता है, theocratic मतलब जहाँ पे religion based political system है, जैसे कि सऊदी अरेबिया, for example, right? Okay. But if you talk about ancient and medieval history anywhere in the world, kahin bhi, during these two times, you know, political system was generally of this type, what was called monarch. Yes, kingship jisko bolte hain, monarchy. But in India, we also found Ganasanghas, republics. क्या मिले इंडिया में? रिपब्लिक्स। ऐसा नहीं कि इंडिया में, I would write that English word here, republics. What do you understand by republic? Are we republic today, India? India is a republic, right? So what is republic? A political system, head of which is elected by the people. So that political system is called republic. So does that mean ancient India में elections होते थे? नहीं, वो अलग तरीके का है. I will talk about that later, right? मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, हम जब वो शुरू करेंगे ना हिस्ट्री पर. So these are two types that we observe in India, right? Monarchy and republic. ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में डेमोक्रेसी भी थी, ठीक है? इनफैक्ट जो वर्ड है ना डेमोक्रेसी, उसका जो रूट वर्ड है डेमोस. डेमोस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर पीपल. डेमोस इज अ ग्रीक वर्ड फॉर पीपल, वहां से आता है वो. सो एथेंस में डेमोक्रेसी थी, ठीक है? वो भी पुराने टाइप की, ऐसा नहीं कि बैलेट पेपर लेकर के इलेक्शंस हो जाएंगे, राइट? ओके. सो पॉलिटिकल सिस्टम्स, इफ यू टॉक अबाउट एंशिएंट मिडिवल टाइम्स, इट वाज मोर अबाउट दिस टाइप, मोनार्की. और मॉडर्न टाइम्स में इंडिया में क्या हुआ? colonial rule आया, British rule, which was a rule by alien power, right? Though it was a democracy in London, England में, यहाँ पे democracy नहीं थी इंडिया में. It was kind of authoritarian system, right? उसके बाद जो हम independent हुए तो democracy आई. समझ में आ रहा है? तो in any given time period आप क्या पढ़ोगे पहले? Type and nature of history, right? Okay. In nature एक word आया है,
टाइप समझ में आया आपको, है ना? नेचर क्या होता है? मैं आपको दो एग्जांपल देता हूँ, एक है मौर्य एम्पायर का और दूसरा है गुप्त एम्पायर। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, ये मौर्य गुप्त है, हाँ? मौर्य गुप्ता ऐसे नहीं है वो, हाँ? यू वुड कॉल इट मौर्य इफ देयर इज अ डैश ओवर दैट ए। मैंने बहुत बार लोगों को अशोका बोलते हुए देखा। अशोका नहीं, वो अशोक। वो कैसे लिखा जाता है पता है क्या? इन ट्रू सेंस हिस्ट्री में इट इज रिटन समथिंग लाइक दिस। सॉरी, इसमें भी मैंने ऐड कर दिया, ये ऐसा है वो एक्चुअली। ये जो डॉट है ना, दैट मीन्स देयर इज एच इन बिटवीन, अशोक, राइट? अगर ऐसे हुआ ना, यू वुड से अशोका। समझ में आ रहा है? फिर अशोक, अशोक, गुप्त, मौर्य। ओके, सो मौर्य एम्पायर का नेचर सेंट्रलाइज्ड था। सेंट्रलाइज्ड मीन्स व्हाट? ऑल द पावर कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर, मतलब राजा के हाथ में और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में पूरा पावर। इन कंपैरिजन गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन वाज डिसेंट्रलाइज्ड। इन कंपैरिजन थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके क्या कारण है हम बाद में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी नो बाय द वर्ड नेचर। ठीक है, सो टाइप एंड नेचर ऑफ पॉलिटी, political system, right? Then administration. So we are supposed to also study administration. Lots of questions came on administration in prelims and mains. Okay, so we need to understand administration of different important empires and kingdoms in India in ancient medieval times. So for example, Maurya Empire का administration important है. Then Gupta Empire का important, Satavahanas for that matter, Chol dynasty, right? Then Delhi Sultanate, Mughals, British administration. समझ में आ रहा है? So all these are important administration which we are supposed to study. उसके ऊपर सवाल आ चुके हैं पहले। ओके, देन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या आता है? उसमें 3 लेयर्स आते हैं, 3 लेयर्स। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। देन इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिटी देखा, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल इवेंट्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं, those also are to be studied. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रिसेंट जो एग्जाम हुआ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अभी हुआ ना जून में, राइट? तो उसमें ये सवाल पूछा गया था कि इन्वेजन्स अलाउद्दीन खिलजी के समय, समझ में आ रहा है? सो मंगोल इन्वेजन्स कितने हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय? सो क्या है वो? पॉलिटिकल इवेंट है। और एक साल पहले 2021 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक इन्वेजन के बारे में एक स्टेटमेंट था, which was statement was incorrect, but these statements were referring to what? Important political events. समझ में आ रहा है? Okay. So this is what we study under what is called political aspect. So वो मौर्य एम्पायर हो, गुप्त हो, चोल, एग्जाम्पल के तौर पे मुगल, जो भी है उसमें क्या पढ़ेंगे हम? पॉलिटिकल एस्पेक्ट। उसमें क्या पढ़ेंगे? टाइप, नेचर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। समझ में आ रहा है? एवरी पीरियड में सेम टाइम पीरियड रहेगा उसमें। ओके, सोशल एस्पेक्ट, उसमें क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। सो अगेन द सेम थिंग, सोशल एस्पेक्ट उसमें क्या है? नेचर एंड स्ट्रक्चर हर टाइम पीरियड में। ओके, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय नेचर ऑफ सोसाइटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी? स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का होता है। एज फार एज यू नो यूरोपियन सोसाइटी इज कंसर्न, यूरोपियन structure is class based. क्लास समझ में आता है ना? अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास लोग बोलते हैं ना, राइट? कैपिटलिस्ट क्लास, वर्कर क्लास, पीजेंट क्लास, क्लास बेस्ड, राइट? ओके, बट इन इंडिया द स्ट्रक्चर वाज मेजरली कास्ट बेस्ड. इट इज इंडीड कास्ट बेस्ड इवन टुडे, राइट? और इसके पहले देयर वाज समथिंग कॉल्ड वर्ण, वर्ण व्यवस्था, वर्ण बेस्ड, वर्ण सिस्टम एंड कास्ट बेस्ड. तो ये ऐसा नहीं कि ये बना और वो कांस्टेंट रहा. हर टाइम पीरियड में, इन एवरी टाइम पीरियड देयर हैज बीन चेंज इन वर्ण सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम. तो वो हमको पढ़ना पड़ेगा. और स्ट्रक्चर का दूसरा एक कंपोनेंट है विमेन. सो वी नीड टू टॉक अबाउट पोजीशन ऑफ विमेन इन डिफरेंट टाइम पीरियड्स. तो उसमें इंप्रूवमेंट है कि डिक्लाइन है? अगर डिक्लाइन है तो उसमें क्या क्या डिक्लाइन हुआ है? सो ऑल दिस थिंग्स वी आर सपोज टू स्टडी, राइट? तो ये हो गया स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट. दिस इज structural aspect.
नेचर क्या है सोसाइटी का। अलग अलग टर्म्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि इट वॉज पेट्रियार्कल सोसाइटी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पुरुष सत्ताक म्हणतो ना आपण त्याला, dominated by men, right? Then it was in egalitarian society. Egalitarian means what? Having equality, more or less social equality, right? In egalitarian, there is no equality, there is inequality. So a society where there is inequality, rank based society, कोई ऊपर है कोई ऊंच नीच जिसको बोलते हैं ना, उस टाइप का society. Then what about gender? Is there gender discrimination? Right? तो ये सारी चीजें, this is called nature of society. Okay. इसमें और भी चीजें, I'm just giving you indicative understanding of these terms. Okay. Then economic aspect. इसमें क्या पढ़ेंगे फिर से? Type, major occupations. ये दो जो टर्म्स है ना, इसको आपको समझना पड़ेगा. सी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, I'm just telling you this and you just try to remember it. Economic development anywhere in the world, दुनिया में कहीं भी economic development की कुछ stages हैं, and generally that is followed by different societies, not deliberately but by nature. उसी तरह का एक evolution होता है. The first stage or the type of economy, first stage or type of economy across the world is what is called nomadic. कौन सा टाइप होता है? Nomadic. What do we understand by this? Nomad. Nomad मतलब the person who wanders from one place to other place. भटके लोग रे, भटके. Wandering people, right? Nomadic economy, right? दूसरा जो स्टेज है, it is pastoral economy. मैं बात करता हूँ इसके बारे में, और कभी कभी ये दोनों साथ में यूज होते हैं वर्ड्स. Then agricultural economy. Agricultural economy. Then mercantile economy. Mercantile. Then industrial economy. मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा हूँ. बाद में there is service based economy. Service based economy. आपको पता है आज कौन सा इकोनॉमी है? Knowledge based economy. We are living in the world of what? Knowledge based economy. या फिर digital economy, datafied economy. What is important today? Data, information. So ये बहुत आज का स्टेज है. हिस्ट्री में वो पढ़ते जो पहले हुआ, आज का नहीं. ये करंट अफेयर्स में आएगा फिर. ओके. सो जनरली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज स्टेजेस. ये जो लाइन के ऊपर लिखा है मैंने, ये स्टेजेस हम पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टेज की जनरली नोमैडिक इकोनॉमी, और यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन कौन सा है? हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग एंड गैदरिंग, राइट? ओके. तो नेचर में जो एनिमल्स है फॉर द फूड पर्पसेस, दोज वर हंटेड, या फिर जो भी मिलता है उसको गैदर करो, फ्रूट्स एंड डिफरेंट अदर थिंग्स दैट यू सी इन दी. जनरली स्टोन एज में ये इस तरह का इकोनॉमी था, नोमैडिक इकोनॉमी. एंड दे नॉट सेटल्ड, घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह में. पैस्टोरल इकोनॉमी, कई बार ये दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, राइट? पीपल से नोमैडिक और पैस्टोरल, बट वी शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट. उसका एग्जैक्ट मतलब पता होना चाहिए, राइट? क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है. बोथ द वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स. पैस्टोरल का मतलब क्या है बताया? क्या पैस्टोरल मीन्स? एक सेकंड. पैस्टर जो होता है, पैस्टर, चलो आपण मराठीत गुराखी म्हणतो बघा, गुराखी. ठीक है. दोज हु लुक आफ्टर कैटल, राइट? कैटल को देखने वाले हैं, है ना, गाय भैंस चराने वाले लोग होते हैं ना. ठीक है. सो यहाँ पे जिसको पैस्टोरल इकोनॉमी बोला जा रहा है, दैट इकोनॉमी इज, यहाँ पे मेजर ऑक्यूपेशन क्या है? कैटल रियरिंग एंड ब्रीडिंग. दैट मीन्स डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स को पालना, राइट? कैटल रियरिंग एंड ब्रीडिंग, राइट? सो यहाँ पे हंटिंग गैदरिंग है, यहाँ पे कैटल रियरिंग एंड ब्रीडिंग. आप ये मत समझना कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चला गया इंसान इकोनॉमिक स्टेज में तो पहले वाला ऑक्यूपेशन बंद हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. जब पैस्टोरल इकोनॉमी थी तब ये भी कर रहे थे लोग और ये भी कर रहे थे. एंड यू नो इट वेरी वेल. हंटिंग तो मतलब अभी भी कुछ लोग करते हैं जो कि इलीगल है. सलमान खान को पूछो जाकर,
ठीक है, सो इलीगल होने के बावजूद करते हैं लोग। सो ऐसा है क्या कि ये खत्म हुआ? नहीं। एंड देयर आर, सलमान खान छोड़ो, कोई ट्राइबल नहीं है। इवन टुडे आदिवासी पीपल एंड ट्राइबल्स दे डू ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो ऐसे मत समझना कि ये खत्म हुआ, आज रात को 12 बजे हंटिंग गैदरिंग खत्म होगा, कल से कैटल, ऐसा नहीं होता है। इट्स नॉट लाइक दैट। तो हम ये कैसे डिफाइन करते हैं? when most of the people in a particular community or society are involved in a particular occupation, तो उसके बेसिस पे उस इकोनॉमी का टाइप डिसाइड होता है। यहाँ पे ज्यादातर लोग हंटिंग गैदरिंग में, यहाँ पे ज्यादातर लोग कैटल रिंग एंड ब्रीडिंग में, राइट? एंड व्हेन एग्रीकल्चर बिगैन, सो दैट economy became agricultural economy. Most of the people were into agriculture as an occupation, right? Okay. Now, agriculture कैसे चलता है पता है क्या आपको? हाउ डज फार्मर really looks at this source of income? कैसे देखता है कोई भी फार्मर? Farmer looks forward to first meet the needs of his own household. ठीक है, जो भी क्रॉप्स आते हैं, राइट, वंस ही हार्वेस्ट द क्रॉप्स, घर में कितना लगता है वो रखेगा पहले। समझ में आ रहा है? उससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन हुआ है, जिसको आप सरप्लस बोलो, व्हाट इज दैट? सरप्लस। सरप्लस अगर होगा तो क्या करेगा? वो बेचने की कोशिश करेगा, राइट? नहीं होगा तो चुपचाप घर में बैठेगा। समझ में आ रहा है? When there is surplus production, people would demand different other things, demand of different other goods, right? तो इससे क्या होता है? ट्रेड। इससे क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स, राइट? ग्रेजुअली सी, नोमैडिक लोग थे पहले, अरे भटकते थे हम, हमारे पूर्वज, ह्यूमन बींग्स, पत्थर लेकर के, है ना? ठीक। सो बाद में कैटल रेयरिंग एंड ब्रीडिंग शुरू हुआ। एग्रीकल्चर जब पता चला वी कैन ग्रो आवर ओन क्रॉप्स, राइट, तो वो सेटल होने लगे कहां पे? जनरली नियर द रिवर्स, रिवर वैली में, राइट? एंड व्हेन यू आर इन द रिवर वैली, देयर इज अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर, नंबर वन। नंबर टू, एल्यूवियम प्लेन्स, एल्यूवियल सॉइल जो होता है ना, इट इज वेरी फर्टाइल एंड पॉपुलेशन वाज लेस एट दैट टाइम। तो जो प्रोडक्शन हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, राइट, इट वाज मोर देन व्हाट दे रिक्वायर फॉर देयर लिविंग, इसको बोलते हैं फूड ग्रेन्स। तो उसके बाद सरप्लस बेचना शुरू हुआ एंड डिफरेंट अदर नीड्स केम। पीपल वांटेड क्लॉथ्स, पीपल वांटेड different other things like pots for example, right? People wanted construction of houses. ऐसा नहीं कि इतने बड़े हाउस एंड ऑल दैट, वेटल एंड डॉग टाइप हाउसेस जहाँ पे मड एंड रीड, झोपड़ा बोलते हैं ना, झोपड़ा उस तरह के। तो वो काम करने वाला कोई कोई लकड़ी से कुछ बनाता है, कोई है ना मेटल से कुछ बनाता है ना? सो ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इन। तो क्या बढ़ गया? ट्रेड। क्या होगा? एक फार्मर है, वो क्या करेगा? फूड ग्रेन दे करके, फॉर एग्जाम्पल प्लो लेगा, प्लो, नांगर नांगर प्लो, है ना? ठीक है, तो ये क्या बना? एक्सचेंज। इसको बोलते हैं बार्टर। बार्टर, जहां पे करेंसी नहीं है लेकिन ट्रेड चल रहा है। तो ऐसा ट्रेड शुरू हुआ। अरे बाद में करेंसी आई, और करेंसी आने से पहले भी there was tremendous amount of trade among the people, right? When most of the people in the sense majority of the people are involved in trade and commerce, so that type of economy is called mercantile economy, trade and commerce. समझ में आया? Okay. Now as the trade and commerce increases, लोगों के डिमांड्स बढ़ जाते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के, राइट? उससे क्या होता है? प्रोडक्ट बनाने मतलब इंडस्ट्री बनती है, so different industries come up, right? इंडस्ट्री का मतलब ये मत समझना कि मशीन आ गया, right? पुरानी इंडस्ट्रीज I'm talking about. So when number of industries increase, craft activities, artisans, right, handicrafts and other things, so say that economy becomes industrial economy when industries come up. समझ में आया? So these are stages of economic development, also types of economy. So nomadic, pastoral, agricultural, mercantile and industrial. Are you getting this? So type and major occupations. Then trade and commerce, currency, etc. लिखा है यहाँ पे. Transportation, for example, right? Taxation, revenue. So different other things will come in once we study different time periods. So this is about the economic aspect of any given time period. Okay. Then the last one, cultural aspect. ये जो लिया है यहाँ पे, that is
directly from the syllabus of UPSC. What is culture? What do we understand by culture? So in simple terms, what UPSC says, art forms, architecture and literature. ये तीन वर्ड्स है ना, those three words. I have directly taken it from syllabus. ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया. UPSC mains का syllabus clearly says this: art forms, architecture and literature is something that you are supposed to study in what is called art and culture, right? Cultural aspect. So in any given time period, you would see certain art forms, right? Certain building construction activity and literature as well. Okay. Art form में क्या आता है? Dance, music, painting, sculpture, I would say, etc. अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होते हैं, राइट? तो सारे इसमें आएंगे. आर्किटेक्चर क्या है? कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी. यू कंस्ट्रक्ट समथिंग, बिल्डिंग्स, राइट? तो आर्ट फॉर्म में नहीं आता क्या? काइंड ऑफ यस, बट कभी कभी क्या होता है कि आर्किटेक्चर के अंदर ये सब कुछ मिलेगा आपको. There is a building, it has got paintings on the wall. There's a building, the pillars are carved out, structure. Are you getting this? So that's why उसको अपने आप में अलग से पढ़ना पड़ता है. Architecture is a major component as far as art is concerned, right? So art forms, architecture, literature. Literature जब बोलते हो तो don't you think आपको सबसे पहले ये जानना पड़ेगा किस लैंग्वेज में लिखा गया? Literature is written in a particular language, and that is why you should also know the language in which that literature has been written, right? So oldest language of India कौन सी है? पता नहीं. The answer we don't know. Why? Before the use of Sanskrit, there was something called Harappan language. और ये कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे हम जानते नहीं है. हिस्टोरियंस से इंडो द्रविडियन, इंडो यूरोपियन, इंडो ऑस्ट्रेलियन, पता नहीं. समझ में आ रहा है आपको? हाँ, जब मैं सवाल ये पूछूंगा ओल्डेस्ट नोन लैंग्वेज, तो उसमें 2-3 आंसर्स आएंगे. संस्कृत, प्राकृत, पाली, these were oldest known languages. ठीक है, बट अननोन लैंग्वेज है ना एक. उसी तरह से इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन स्क्रिप्ट, लैंग्वेज में स्क्रिप्ट भी होता है, मे और मे नॉट बी. अगर ओनली स्पोकन लैंग्वेज है, देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट. अगर लिटरेरी लैंग्वेज है, लिटरेरी मतलब उसमें कुछ लिखा गया है, तो स्क्रिप्ट आएगा. सो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया, अगेन हरप्पन स्क्रिप्ट. ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया. डिसाइफर्ड मतलब डिकोडेड रे. पुराना स्क्रिप्ट है, हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं. इट इज अनडिसाइफर्ड. पुराना स्क्रिप्ट है, हमने उसको पढ़ लिया है, डिकोड किया, डिसाइफर. सो ओल्डेस्ट अनडिसाइफर्ड लैंग्वेज इज हरप्पन, राइट? एंड ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड लैंग्वेज, सॉरी, स्क्रिप्ट, ब्राह्मी. ब्राह्मी इज द ओल्डेस्ट डिसाइफर्ड स्क्रिप्ट. समझ में आ रहा है? तो आपको लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और उसमें जो लिटरेचर है ये पढ़ना पड़ेगा अलग अलग टाइम पीरियड में. समझ में आ रहा है? सो दीज आर दी एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री दैट वी स्टडी इन एनी गिवन टाइम पीरियड. पॉलिटिकल एस्पेक्ट, उसमें वो सारी चीजें, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट. आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके. नाउ वी टॉक्ड अबाउट हिस्ट्री इन जनरल. लेट अस टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके. History of India begins with Vedic age. It begins with Vedic age. क्यों? क्या सर हम हिंदू हैं तो वो वैदिक से शुरू होगा ना? ऐसा नहीं है. So do not bring religion, caste, political ideologies, gender into the classroom. आपके biases मत लेके आओ, ठीक है? ये क्यों बोला गया है? Because records कहाँ से मिलना शुरू होता है जिसको हम पढ़ पाते हैं? वैदिक एज से. एंड दोज आर ओरल रिकॉर्ड्स, बाद में लिखे गए. अगर मैं वैदिक एज की बात करूं, व्हाट इज वैदिक एज? एक रफली कौन सा टाइम पीरियड है? 1000 to 600 BCE, 1500, sorry, 1500 to 600 BCE, before common era,
राइट ओके। तो ये वो टाइम पीरियड है, मतलब आज से कितने साल पीछे अगर ये मैं कंसिडर करूं तो 3500, 2000 चल रहा है राइट 3500 ठीक है। सो 3500 ईयर्स बैक, वहां से लेकर के कहां तक, ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स तक, 2500 ईयर्स तक, राइट। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक एज, राइट ओके। तो इस समय हाँ, जो उन लोगों ने रिकॉर्ड्स छोड़े हैं ना, वो रिटन नहीं थे, वो कैसे थे, सॉरी हाँ, ओरल थे। So those records were not written, those were oral. तो बाद में लिखे गए, when that time period ended, उसके बाद वो लिखे गए। So during this period, अब रिकॉर्ड्स मतलब क्या है पता है क्या आपको, वैदिक लिटरेचर। वैदिक लिटरेचर वाज ओरल इनिशियली, बोलते कि वेद रचे गए थे, लिखे नहीं गए थे, वेदास वर कंपोज्ड एंड नॉट रिटन डाउन। लेटर ऑन, बाद में आगे आने के बाद उनको लिखा गया, फिर वो हमारे तक आता है, राइट। तो यहाँ के रिकॉर्ड्स हैं उस समय के, लेकिन कैसे रिकॉर्ड्स हैं, ओरल रिकॉर्ड्स। समझ में आ रहा है, ओके। देन हाँ, नहीं अगेन यहाँ पे दोनों आ गए इसमें, सी वॉल पेंटिंग रिकॉर्ड नहीं है, वो आर्ट है। आर यू गेटिंग दिस? पेंटिंग इट इज नॉट लिटरेचर, लिखा हुआ कुछ नहीं है वो, और वो इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन, इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। मैं कुछ पेंट करता हूँ, कोई इसमें कुछ और देखेगा और दूसरा कुछ और देखेगा। इट इज आर्ट फॉर्म, नॉट द रिकॉर्ड एज सच, ओके। और ये दो टाइम पीरियड्स है, दिस इज कॉल्ड ऋग्वेदिक या फिर अर्ली वैदिक टाइम पीरियड, दिस इज लेटर वैदिक टाइम पीरियड, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्ट वैदिक, इसके बाद का 600 टू ऑलमोस्ट 300 BCE। आर यू गेटिंग दिस? तो यहाँ पे वो थोड़ा सा लिखना शुरू हो गया, उस टाइम में नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा रुक जाओ, है ना। ये सारा जो है ना कि एंशिएंट इंडिया में क्या क्या है, कौन से टाइम पीरियड्स पढ़ते हैं हम, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देयर इज समथिंग कॉल्ड स्टोन एज, राइट। देन हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें क्या है, स्टोन एज में 4 पार्ट्स है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक, राइट। आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन वैदिक एज, इसमें 2 पार्ट्स है, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक। देन पोस्ट वैदिक एज, पोस्ट वैदिक पीरियड, राइट। महाजनपदा, जैनिज्म, बुद्धिज्म, साइरस का इन्वेजन, अलेक्जेंडर का इन्वेजन, राइट। देन मौर्य एम्पायर, सो मौर्य पीरियड, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मौर्य, उसके बाद गुप्त पीरियड, एंड देन पोस्ट गुप्त। सो दिस इज एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस राइट एज अ नेक्स्ट लेक्चर, जहां पे हम आउटलाइन पढ़ेंगे हिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? आउटलाइन। तो उसमें इस हर पीरियड में क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, उसका एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग एक लेक्चर में, एंशिएंट में क्या है, मिडिवल में क्या है, मॉडर्न में क्या है, उसको बोलते हैं कि ढांचा या फिर काइंड ऑफ आउटलाइन या फिर काइंड ऑफ स्केच, शॉर्ट ओवरव्यू, राइट। तो वो नाउ व्हाट वी डिस्कस, स्टोन एज है, आईवीसी है, वैदिक एज। यहाँ पे क्या पढ़ना है रे हमको, हर पीरियड में क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एस्पेक्ट। आर यू गेटिंग दिस नाउ? What exactly are we supposed to do in history? Okay, ठीक है। So don't worry, we will be talking about all these things later on. Okay. Yes, Indian history in terms of जो understanding है recorded past, ठीक है, it begins with Vedic age, right? What you say, the records and all that, painting, तो depend करता है आप कैसे देखते हो, but in general जो accepted है वो ये है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है
साइंस टाइप. What is work science में? By the way, science is easy to understand. There's a misconception. एक misconception है समाज में. जो लोग साइंस लेते हैं वो होशियार है, जो आर्ट्स लेते हैं वो होशियार नहीं. ये बहुत बड़ा misconception है. बात ये अलग है कि हम आर्ट्स लेकर कुछ करते नहीं, इसलिए आर्ट्स को बदनाम किया गया है. बट आर्ट्स इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. एंड बाय द वे, दिस कमिंग फॉर एन इंजीनियर, कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियर. ठीक है, ये मत बोलना कि मैं आर्ट्स का हूं इसलिए आर्ट्स के बारे में कुछ बता रहा हूं. आई हैव दैट एडवांटेज कि हैविंग कंप्लीट माय इंजीनियरिंग, राइट, हैविंग वर्कड इन आईटी इंडस्ट्री फॉर 5 years, आई कैन से दैट आर्ट्स इज मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. होता क्या है, अब देखो, मैथमेटिक्स बहुत आसान है रे समझने में. ये समझना कितना मुश्किल है बताओ मुझे. देखो, इफ आई एम टीचिंग मैथमेटिक्स, ये क्या है, 2 करो काउंट, 2 + 2 4 हो गया ना. बट मुझे कितना बोलना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ठीक है, वर्क क्या है, व्हाट इज वर्क इन साइंस? सिंपल, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क. तो मैंने आपको ये समझाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो सब देखो इधर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क हो गया. आई कैन शो इन साइंस. ये दिस इज इमेजिनरी, एब्स्ट्रैक्ट है, आपको समझना पड़ता है, उसको फील करना पड़ता है. हाँ, ठीक है. सो आई एम हियर इन दिस चेयर फॉर व्हाटएवर नंबर ऑफ मिनट्स, 60 minutes, 120 minutes, right? According to science, मैंने कोई काम नहीं किया बिकॉज मैं जगह से हिला भी नहीं ना. They want displacement in place, right? है ना. But according to social science, I have worked a lot. So you need to understand this, right? Social science में कई सारे aspects होते हैं, ठीक है, वो subjective matter है उसमें, and you need to understand in this manner. तो सबसे पहले वो attitude आपने develop करना है कि हाँ, वो कहीं ना कहीं अलग तरह का. तो अलग अलग historians have different opinions. Some people say that नहीं, we can go back to Stone Age as well. But एक जनरल कंसेंसस, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन सभी ने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय हिस्टोरिकल पीरियड. और ये हर जगह पे एप्लीकेबल है. आई वुड टॉक अबाउट एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट, एज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस. एंड मॉडर्न हिस्ट्री कहाँ शुरू होता है? प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? पुराने समय जब वो हुआ था, उन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है. मैं जब बोलता हूँ ना कैसे, इट्स अ जोक बट वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. आज रात को 12 बजे एंशिएंट खत्म होगा और सुबह मिडिवल, ऐसा कुछ नहीं है रे. वो हिस्टोरियन डिसाइड करते हैं, हिस्टोरियन, राइट. एंड डिफरेंट हिस्टोरियंस हैव डिफरेंट ओपिनियंस. मैं आपको बताऊं क्या, देयर आर हिस्टोरियंस हु से दैट मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद बैटल ऑफ प्लासी 1757 with the beginning of British rule, right? 1757, है ना. There are other historians who say that it starts with 1850s onwards, notably बिपिन चंद्र. बिपिन चंद्र का बुक यहां से स्टार्ट होता है, यहां से नहीं. समझ में आ रहा है? और ये 100 साल का अंतर है रे. तो हमने क्या समझना है फिर? मॉडर्न पढ़ना मतलब कहां से पढ़ना है? इसलिए यूपीएससी ने स्पेसिफिकली बोला है मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम मिडल ऑफ 18th century. Are you getting this? So different historians have different opinions. You have to go by what is the consensus opinion, right, among historians. Okay. So history of India begins with Vedic age, based on the understanding that historical period begins from that point where we start getting records, either oral or written, right? Okay. Period of Harappan civilization is called proto-history in India. जो शुरुआत में देखा ना, पास्ट क्या है, प्री पास्ट, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, उसके एग्जांपल्स मिल रहे हैं आपको, है ना. तो हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट्स विद वैदिक एज. प्रोटो हिस्ट्री कौन सा है? हड़प्पन सिविलाइजेशन. क्यों प्रोटो हिस्ट्री है? सिंपल अंडरस्टैंडिंग है उसका. रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस पीरियड आर अवेलेबल बट नॉट डिसाइफर्ड येट. अभी तक उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा वो क्या लिखा है उन लोगों ने, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों ने, राइट. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रोटो हिस्ट्री. आगे जाकर के अगर if we are able to decipher what they wrote at that time, right, probably this would be called as beginning of Indian historical period, right? Okay. और इसके पीछे जो भी जाएगा, that is prehistory. And prehistory में क्या आता है? Stone Age.
समझ में आया? आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? सो इंडियन हिस्ट्री, उसमें प्री हिस्ट्री में स्टोन एज आएगा, प्रोटो हिस्ट्री में हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल पीरियड में वैदिक एज ऑनवर्ड्स up to the present times. Okay, this is Indian history. Now थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ गया ना अब हमको कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है. Now we will talk about what UPSC syllabus in the light of what we have understood, right? Okay. First of all, preliminary examination. मैं आपको बता दूं, इसको थोड़ा सा इग्नोर करो for a moment. Just ignore this and focus on this. There is one-liner syllabus in UPSC प्रिलिमिनरी का सिलेबस का बुकलेट जो है ना, उसमें एक लाइनर का सिलेबस क्या है, वो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट. सबसे पहला सवाल तो यह आना चाहिए मन में, व्हेन यू रीड दिस, इंटरनेशनल मूवमेंट इजंट इट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया? हिस्ट्री ऑफ इंडिया का पार्ट है कि नहीं इंटरनेशनल मूवमेंट? अगर है तो अलग से क्यों लिखा है? इट्स वेरी सिंपल. यूपीएससी चाहती है कि आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ो, नो डाउट, लेकिन फोकस इंटरनेशनल मूवमेंट के ऊपर होना चाहिए. ठीक है. अब दूसरा सवाल ये आता है, इंटरनेशनल मूवमेंट के अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है? ठीक है, देखो, किसी भी देश में, किसी भी रीजन में हिस्ट्री इज डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, राइट? तो वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न बिकॉज इंटरनेशनल मूवमेंट कहां पे आता है? मॉडर्न हिस्ट्री में. मैंने अभी आपको बताया, अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट्स फ्रॉम 1757. ठीक है. और इसको अगर मैं खींचूं 1947 तक, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, राइट? तो 1757 से लेकर 1857 तक एक कंपनी का रूल है हमारे ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी. समझ में आ रहा है? और 1885 में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, राइट? तो वहां से लेकर के इंडिपेंडेंस तक का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड पीरियड ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट. तो इसके ऊपर फोकस करने के लिए बोला आपको, इस टाइम पीरियड के ऊपर. सो मॉडर्न का एक हिस्सा है, वो इंपॉर्टेंट हिस्सा है. सो आर वी क्लियर ऑन दिस नाउ? और फिर से मत बोलना सर ये 85 में कांग्रेस हुआ इसलिए वहां से फ्रीडम स्ट्रगल, क्या मतलब आप कांग्रेस ही लगते हो? सबसे पहली बात, आज जो कांग्रेस है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, राइट, उसका और इस कांग्रेस का कोई रिलेशन नहीं है, चाहे वो कुछ भी बोले. समझ में आ रहा है आपको? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा है क्या? अभी मत बोलना साहब बीजेपी के लग रहे हो. नहीं, मैं किसी का नहीं. हमने यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ना है ऑब्जेक्टिव तरीके से, कि नहीं जो हुआ है उसको पढ़ो, राइट? तो बात यह है कि इस कांग्रेस में सारे थे, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, गांधीयन और कई बार रिवॉल्यूशनरीज भी. We all know that Subhash Chandra Bose was a revolutionary, but he was part of Congress. Or how many of you know that Bhagat Singh was part of non-cooperation movement launched by Congress? He was a kid, but he participated. Gandhian philosophy से influence होकर के. हाँ, ये बात अलग है. He became very vocal critic of Gandhian philosophy later on. ठीक है, बहुत सारे लोग. तो ये ऐसा नहीं है कि आज क्या है कि अलग अलग पार्टी बनाई है लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन बहुत सारे लोग कांग्रेस में थे एट दैट टाइम. इसलिए ये कांग्रेस अलग है जिसने फ्रीडम स्ट्रगल लीड किया था, और ये जो कांग्रेस बना वो अलग है. नेहरू जब तक थे तब तक वो कांग्रेस शायद हम बोल सकते हैं कि मोर और लेस, लेकिन टुकड़े हुए बाद में. इंदिरा गांधी के समय 2 टुकड़े हुए कांग्रेस के, एक सिंडिकेट कांग्रेस बना और दूसरा इंदिरा कांग्रेस, कांग्रेस आई बोलते. तो हो गया ना, टुकड़ों में बट गया. बाद में तो और भी टुकड़े हुए हैं उसके. ठीक है, तो वी कैन नॉट इक्वेट द करंट पॉलिटिकल पार्टी टू the party which fought that freedom struggle, and उस पार्टी में बहुत सारे लोग थे. So we should not do that, right? Okay. तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसके ऊपर फोकस करने के लिए बोला है आपको. इसका मतलब ये हुआ हिस्ट्री का एक हिस्सा है ये, राइट? तो ये जो बाकी हिस्सा है हिस्ट्री का पूरा, एंशिएंट से लेकर मिडिवल के इस पॉइंट तक, काफी बड़ा हिस्सा है, राइट? इसके ऊपर जितने सवाल आएंगे ना, एक्स अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस, इसके ऊपर उतने ही आएंगे. मतलब पूरे हिस्ट्री पे जितना आएंगे, रफली आई एम सेइंग, रफली
कभी 5, 6, 6, 5 ऐसे हो सकता है, राइट। लेकिन एक टाइम पीरियड पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। दैट मीन्स आवर फोकस शुड बी मोर ऑन इंटरनेशनल मूवमेंट। ठीक है, आप समझो इस बात को कि the entire UPSC syllabus wants you to focus on modern history more, right? Ancient medieval थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, that is the UPSC का syllabus, right? And within modern history you are supposed to focus on international movement, या फिर जिसको फ्रीडम स्ट्रगल बोला गया। ओके, नाउ अभी जो मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड डिकोडिंग। इसको डिकोड करना सिलेबस की लाइन को। सो वी आर डिकोडिंग द सिलेबस नाउ। ओके, क्या क्या है उसमें? एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, देन मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल मूवमेंट एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, राइट। तो करना क्या एग्जैक्टली? सिलेबस में तो एक ही लाइन है, तो मैंने जो लिखा यहाँ पे, ये किसके बेस पे लिखा है? अब तक जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इसीलिए देखना है, not to answer them, huh? When you begin the preparation, right, when you look at the previous year question papers, you are not trying to answer them. You won't be able to answer them because अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं हुआ। क्यों देखना है फिर? इसलिए देखना है कि सवाल कहाँ आते हैं, किस एरिया के ऊपर, राइट। सो इफ यू लुक एट एंशिएंट एंड मिडिवल के ऊपर जो सवाल आए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो मेजरली फोकस इज ऑन कल्चर। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? फोकस ऑन कल्चर। मैंने ये लिखा है क्या ओनली क्वेश्चंस कम ऑन कल्चर? नो, फोकस इज ऑन कल्चर एंड समटाइम्स यू आल्सो गेट क्वेश्चंस ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन से एस्पेक्ट्स हैं? कौन से एस्पेक्ट्स है हिस्ट्री के? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, जो मैंने थोड़ी देर पहले, अब समझ में आया पहले मैंने वो क्यों डिस्कस किया? गेटिंग दिस? सिलेबस को समझने के लिए वो समझना जरूरी है रे कि हिस्ट्री क्या है, उसमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली। नाउ आई कैन एक्सप्लेन कि कल्चरल पार्ट पे फोकस है, व्हाट आर द अदर पार्ट्स, यू नो इट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, राइट। तो ये नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मिनिमम रिक्वायर्ड तरीके से, मिनिमम रिक्वायर्ड एंड फोकस ऑन कल्चर। दैट इज हाउ यू आर सपोज स्टडी एंशिएंट एंड मिडिवल। हाँ, आर यू गेटिंग दिस कि मैं अप्रोच बता रहा हूं? बाद में हाउ टू स्टडी में बस मैं समराइज करूंगा जो मैंने बोला है, राइट। सो दिस इज द अप्रोच, यू फोकस ऑन कल्चर एज फार एज एंशिएंट मिडिवल इज कंसर्न, राइट, एंड अदर एस्पेक्ट्स आर टू बी अंडरस्टूड इन अ बेयर मिनिमम मैनर, जितना रिक्वायर्ड है, पूरी डिटेल में नहीं। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मैंने अभी जैसे बोला आपको दो पार्ट्स है उसके, दो हिस्से हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल एंड क्राउन रूल, ब्रिटिश पार्लियामेंट का रूल। पहले कंपनी रूल कर रही थी हमारे ऊपर, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। ओके, सो 1757 टू 1857, 58, दैट वाज कंपनी रूल, दैट वाज कंपनी रूल। और ये जो है इसको बोलते हैं क्राउन रूल, क्राउन रूल है ना। क्राउन रूल क्यों? हमारे यहाँ पे किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल आता है, पता है क्या आपको? प्रेसिडेंट्स रूल महाराष्ट्र में आया था ना, अभी ये जो गवर्नमेंट बना है ना 3 लोगों का, राइट, उसके पहले एक अलायंस था, बीजेपी एंड सेना, शिवसेना, उनको मेजोरिटी मिला था, राइट, है ना। उनमें कुछ हो गया, दोनों के झगड़े, तो बाद में प्रेसिडेंट्स रूल अप्लाई किया था, पता है क्या आपको? तो प्रेसिडेंट्स रूल में किसका रूल होता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये आपने कैसे बोला? बिकॉज यू नो दैट प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड, नॉमिनल बोलने के लिए, रियल हेड इज कैबिनेट एंड प्राइम मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? हाँ, तो उसी तरह से इंग्लैंड में नॉमिनल हेड इज क्वीन। क्वीन, क्राउन क्या होता है? मोनार्की, इसलिए क्राउन बोला जाता है। क्वीन, क्वीन इज द नॉमिनल हेड। तो वहां पे जो भी लॉज पास होते हैं, जो भी चीजें की जाती है ना, इन द नेम ऑफ क्वीन, हमारे यहाँ पे इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। समझ में आया? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था हमारे ऊपर, ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो रूल था, उसको बोला गया क्राउन रूल, दैट इज कॉल्ड क्राउन रूल। सो कंपनी रूल एंड क्राउन रूल, ये दो हिस्से हैं उसके। जब क्राउन रूल शुरू हुआ ना, तो वो इंटरनेशनल मूवमेंट का टाइम पीरियड आपको देख सकते हो उसके अंदर, 1885 टू 1947। अब हम में से कुछ लोग बोलेंगे
इसका मतलब ये है क्या कि रिवोल्ट ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था? आर यू गेटिंग दिस? ओके, उसके बारे में अलग अलग ओपिनियंस है. देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857. ठीक है, मैं जानता हूं कि इट वाज एन इंपॉर्टेंट रिवोल्ट, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, एंड सावरकर कॉल्ड इट फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. सावरकर ने क्या बोला था? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. उसमें दिक्कत ये है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ नेशनल वॉर, ठीक है, तो उसमें जो पार्टिसिपेंट थे वो क्यों लड़ रहे थे, थोड़ा सा देख लो. ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, उनका स्लोगन क्या था? मेरी झांसी नहीं दूंगी, राइट, कि मेरा भारत नहीं दूंगी. तो वाज इट नेशनल? नाना साहेब पेशवा, वो क्यों लड़ रहे थे? ब्रिटिशों ने पेंशन बंद कर दिया था. यू कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट दिस. मंगल पांडे एंड ऑल द सोल्जर्स, उनके अलग ग्रीवेंसेस है. कारतूस, गाय की चर्बी, वो जो भी है, हर एक के अपने अपने कारण थे. देश का फ्रीडम, ये कॉन्सेप्ट तब नहीं था, अनफॉर्चुनेटली. ठीक है, समझ में आया? फिर भी ऑल द पीपल इन इंडिया, राइट, यूनाइटेड अगेंस्ट एलियन पावर. एलियन पावर मतलब फॉरेन पावर. तो उतना नेशनलिज्म था, लेकिन वो काफी एम्ब्रियोनिक, मतलब न्यूबॉर्न, अभी शुरुआत हुई थी, राइट. तो उसको फ्रीडम स्ट्रगल बोलना मुश्किल है. दो दो द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वे सोड देयर. भारतीय राष्ट्रवाद जो है उसके सीड्स वे सोड देयर, और बाद में ग्रो हुआ. ठीक है, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस से क्यों इंडियन नेशनल मूवमेंट? वो इसलिए बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस हैपेंस टू बी द फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट. हाँ, वो कैसा कॉन्सेप्ट है? पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, राइट. तो उसके लिए ऑल इंडिया फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बनी? ये ऑल इंडिया, राइट. ओके, ना मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं. आपने वो टू स्टेट्स नाम की मूवी देखी है क्या? टू स्टेट्स नाम की एक मूवी आई थी, यस और नो? अरे वो चेतन भगत के नोवेल के ऊपर थे ना, राइट. एक पंजाबी लड़का होता है, लड़की तमिल लड़की है ना. वो दोनों के मदर को आप ऑब्जर्व करो. वो जो तमिल लड़की है, उसकी मदर कुछ बोलती है ना, तो पंजाबी जो लड़का है उसकी मदर को लगता है मुझे गालियां दे रही है. आर यू गेटिंग दिस? तो एक बात बताओ, अगर आज ये हाल है, राइट, तो पहले क्या होगा? पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड ईच अदर्स लैंग्वेज. तो ये एक देश है. अगर कोई तमिल इंसान आके बोल रहा है कि दिस वन कंट्री वी शुड फाइट फॉर इट, पंजाबी सोच रहा है मुझे गालियां दे रहा है, मुश्किल है, राइट. तो आपको पता है क्या, इंग्लिश बिकेम लिंगुआ फ्रैंका. इंग्लिश क्या हुई? कॉमन लैंग्वेज. आर यू गेटिंग दिस? इसलिए वो समझ पाए एक दूसरे को. नेशनलिज्म कब होता है? जो आप सब एक हो, या आपको ये जो भावना है वो आनी चाहिए ना. इसलिए वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑनवर्ड्स, उस प्लेटफॉर्म पे सारे लोग आए, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल. और प्रॉब्लम, दिक्कत ये है कि देयर इज वन लैंग्वेज विच इज स्पोकन अक्रॉस इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर, राइट. हिंदी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी है, राइट. राइट. पर प्रॉब्लम ये है कि साउथ इंडिया में हिंदी को उतना एक्सेप्टेंस नहीं है. आज भी वो लोग मूवमेंट करते हैं हिंदी लैंग्वेज के अगेंस्ट. आप तमिलनाडु जा, दे वुड प्रेफर टॉकिंग इन इंग्लिश बट नॉट इन हिंदी. उनका अपना रीजनल प्राइड है. बोलते हैं या तो तमिल में बात करो या फिर इंग्लिश में बात करो, हिंदी नहीं चलेगी. तो तब तो बहुत ज्यादा था. आजकल तो हम उसको काफी हद तक उसको ये कर पाए. तो इसीलिए एक कॉमन लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश बनी एट दैट टाइम. यस, मेनी पीपल इन इंडिया हेट इंग्लिश. ब्रिटिशों का है सर, हम क्यों यूज कर रहे हैं आज बैठ के इधर, है ना. बट बात ये, आज भी कई सारे लोग उसी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, राइट. लिंगुआ फ्रैंका का मतलब समझ में आया? कॉमन लैंग्वेज. आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई लैंग्वेज तो चाहिए जिससे आप एक दूसरे के व्यूज को समझ पाए. तो इसीलिए कांग्रेस के साथ वो हुआ इंटरनेशनल मूवमेंट का बिगिनिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस. ओके, तो 1885 से लेकर 1947 तक स्पेशल एम्फेसिस. इस पे क्या होना चाहिए? स्पेशल एम्फेसिस, बिकॉज इसके ऊपर कई सारे सवाल आ चुके हैं, राइट. पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड जिसमें ओवरलैप विद द पॉलिटी.
इकोनॉमी, सोसाइटी, अलग अलग सब्जेक्ट्स। मैं आपको बात बताता हूँ, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ना शुरू होता है 1947 से और कहाँ तक, अप टू प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है एग्जैक्टली? कई सारी चीजें, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट देन इस पे दोनों आएंगे, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना वो। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, सरदार पटेल का जो काम था ना, अलग अलग स्टेट्स को इंडिया में लाना और एक सिंगल देश बनाना, राइट। उसके बाद शुरू होता है रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो शुरू किया था काम, वो आज तक चल रहा है बाय द वे। ठीक है, तो आपको पता है कि अलग अलग स्टेट्स बने। महाराष्ट्र कब बना? महाराष्ट्र और गुजरात 60 में बने, राइट। तो ये प्रोसेस खत्म हुआ क्या? नहीं, रिसेंट कौन सा है? कश्मीर एंड लद्दाख, भूल गए आप लोग। सो बात ये है, यहां से लेकर वो प्रोसेस चला है, तो आते आते किससे मर्ज होता है? करंट अफेयर के साथ मर्ज होता है। इट मर्जेस विद, सो कश्मीर अगर छोड़ दे तो फिर तेलंगाना, तेलंगाना छोड़ दे तो फिर उत्तराखंड, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। दैट प्रोसेस इज कंटिन्यूअस। और ये प्रोसेस कहां पढ़ते हैं? कहां पढ़ते हैं? ठीक है, आज क्या हो गया? पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। तो इकोनॉमिक्स में आप प्लानिंग कमीशन पढ़ते हो, नीति आयोग। हिस्टोरिकल जो एक एस्पेक्ट है इकोनॉमिक, वहां पे क्या पढ़ोगे आप? फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे? ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ोगे, वहां पे पढ़ोगे ना। आयर जब पढ़ोगे तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। यही सारे टॉपिक पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में है। सो जनरली मैं क्या करता हूँ, अब देखो जितने भी सब्जेक्ट मैंने बताए उन सबके लिए हमारे यहाँ पे देयर आर सेपरेट फैकल्टी मेंबर्स, ओके। सो एवरी फैकल्टी मेंबर विल डील विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इफ यू आर डीलिंग विद पॉलिटी, फॉर एग्जांपल, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं मोस्टली लोग, राइट। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है उसमें? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो द पॉइंट इज, आई रियली डोंट नीड टू टेक दिस सेपरेटली, क्योंकि हो जाता है। वो लास्ट कंपोनेंट रखता हूं मैं जनरली, है ना, आई कीप इट लास्ट कंपोनेंट। एंड व्हेन आई कंप्लीट ऑल दिस थिंग्स, ये जब कंप्लीट होता है ना हिस्ट्री का पूरा, इसको टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स को हर साल, आप बताओ मुझे पोस्ट इंडिपेंडेंट में सब कुछ है 1 2 3 4, इसमें से क्या नहीं हुआ है? एंड स्टूडेंट्स टेल मी सर हो चुका है वो, लेट अस नॉट वेस्ट द टाइम। आपको एक बात बताऊं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज टाइम। ठीक है, एक बार पढ़ लिया, समझ में आया क्लासरूम में, डोंट ट्राई टू अटेंड इट मल्टीपल टाइम्स। आई लाइक दिस। वो जो आया था ना एक स्टूडेंट, उसने बोला सर मैं अटेंड कर चुका हूँ। दैट इज द राइट एटीट्यूड, राइट। लेक्चर में हो चुका है, निकलो पढ़ो। व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सेल्फ स्टडी। क्लासरूम का फायदा क्या है? सेल्फ स्टडी करने के लिए जो बिगिनिंग चाहिए, एक जो गाइडेंस चाहिए होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसके ऊपर डिस्कशन, या फिर कोई एक टॉपिक उसके सारे एस्पेक्ट्स, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सिलेबस जब पढ़ते हैं ना हम एज अ बिगिनर, इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, तो कोई होना चाहिए जो बता दे कि हाँ ये सब कुछ है उसमें। दिस इज द पर्पज ऑफ क्लासरूम, राइट। फिर भी आपको लगता है कोई टॉपिक अगर आई शुड डिस्कस इन दिस कंपोनेंट, यू मस्ट टेल मी, we would definitely discuss. Got the point? Okay. So these are components of history. तो प्रीलिम में ये पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? ओके, नाउ मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है? एज आई सेड इन द बिगिनिंग, जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री का कंपोनेंट आता है, राइट। उस पे 2 और कंपोनेंट्स हैं, सोशियोलॉजी का है एंड देन ज्योग्राफी का, राइट। ओके, सो हिस्ट्री का जो कंपोनेंट है उसमें दीज आर 5 लाइंस ऑफ सिलेबस। ओके, सो फर्स्ट वन क्या लिखा है? इंडियन कल्चर। इंडियन कल्चर, उसके सामने क्या लिखा है? सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर। समझ में आया कल्चर के अंदर क्यों लिया था मैंने वो, राइट। आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। सो एज आई सेड, आर्ट फॉर्म में क्या क्या आएगा? डांस, म्यूजिक, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा। लिटरेचर में लैंग्वेज भी समझना पड़ेगा आपको, और उसमें 2 टाइप के लिटरेचर आते हैं, रिलीजियस लिटरेचर एंड सेक्युलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर का एग्जांपल वैदिक लिटरेचर ने जो देखा वो रिलीजियस लिटरेचर है, राइट। अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, दैट इज सेक्युलर लिटरेचर। समझ में आ रहा है आपको? ओके, देन आर्किटेक्चर में डिफरेंट बिल्डिंग्स वी स्टडी, राइट। ओके, सो दिस इज वन कंपोनेंट। और क्या लिखा आगे देखो, सो सेलिएंट एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, राइट, ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम
एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न टाइम्स तक का जो आर्ट कल्चर है वो पढ़ना पड़ेगा, राइट? ओके, नाउ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम मिडल ऑफ 18th सेंचुरी। मैंने कहा ना आपको, यूपीएस ने क्लियरली बोला है, बिकॉज अलग अलग हिस्टोरियंस अलग अलग बात बोलते हैं, राइट? मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, तो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी 1750। 1750 में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है जो कि कोई बड़ा चेंज बता दे हमको, राइट? सो इट इज बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 which marks the beginning of British rule in India। यहां से मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? सो मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट, उसमें क्या पढ़ना है? सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज। क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज, ठीक है? मैंने कहा ना, पास्ट में बहुत कुछ हुआ है रे, हजारों लोगों की शादियां हुई हैं, हजारों लोगों की डेथ्स हो चुकी है, राइट? हजार लोगों के बच्चे पैदा हुए हैं, ये सब कुछ लिखना है क्या? नहीं, क्या लिखना है? इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जिससे समाज के ऊपर एक इम्पैक्ट हुआ, उसको कंसिडर किया जाता है सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। इसका मतलब ये हुआ, देयर इज नो स्पेसिफिक एरिया। आपको ये नहीं कहा है सिलेबस में कल्चर पढ़ो, आपको ये नहीं कहा है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ो, मतलब सब कुछ पढ़ना है। आर यू गेटिंग दिस? ये इस तरह का सेंटेंस एंशिएंट और मिडिवल के बारे में नहीं है। सो लॉजिक जो हमने पहले एस्टेब्लिश किया था, दैट इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। यहाँ पे भी वो लॉजिक अप्लाई होता है। एंशिएंट और मिडिवल में फोकस कहाँ होगा? कल्चर के ऊपर, क्योंकि बोला है आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट मिडिवल टू मॉडर्न। यहाँ क्या शुरू किया? मॉडर्न शुरू किया। मॉडर्न में सब कुछ पढ़ना है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर। एंशिएंट मिडिवल में फोकस कहाँ रहेगा? कल्चर के ऊपर। और जो तीन एस्पेक्ट्स है वो पैर में पढ़ने हैं मेंस के लिए भी। ओके, नाउ मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस दिया है, फिर से फ्रीडम स्ट्रगल अलग से लिखा है। We know that freedom struggle is part of modern history, but it is again mentioned differently. What does that mean? Emphasis would be more on freedom struggle. 6 या 7 सवाल आते हैं वहां पे हिस्ट्री के ऊपर, उसमें से 2 एट द मोस्ट एंशिएंट मिडिवल के होते हैं, 4 मॉडर्न के होते हैं, उसमें इसमें से 3 मोस्टली फ्रीडम स्ट्रगल के होते हैं। आर यू गेटिंग दिस? तो 3 पहले वाले हिस्ट्री के ऊपर, फ्रीडम स्ट्रगल के 3। मैंने कहा ना कि एक्स एक्स बेटे ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इंटरनेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल। समझ में आया? ओके, इन टर्म्स ऑफ मेंस एज वेल। इसका मतलब ये नहीं कि एंशिएंट मिडिवल नहीं पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, बट विथ मोर फोकस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम स्ट्रगल में वेरियस स्टेजेस, इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हिस्ट्री में क्या होता है? आई टेल यू, कोई नया सब्जेक्ट है जैसे एनवायरमेंट, आपको कुछ लेना देना नहीं होता उससे। एनवायरमेंट नाम का सब्जेक्ट है। इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या है? वेयर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड कौन सा तीसरा? हाँ, लिथोस्फीयर, राइट। ये तीनों एक होते हैं ना, वहां पे लाइफ शुरू होता है, दैट इज इकोलॉजी। यू आर लाइक हाँ सर सही है, ठीक है, मैंने बोल दिया गांधी, सो गांधी वाज होपलेस, सो गांधी वाज ग्रेट। ओपिनियन, यहाँ पे कोई ओपिनियन नहीं, यू आर लाइक ओके हाँ सही है। हिस्ट्री में प्रॉब्लम क्या है पता है क्या? आज लोगों ने इसको पोलराइज करके रखा है, एंड वी आर कमिंग unnecessarily under influence of political leaders and political parties। मैं सभी की बात कर रहा हूँ, किसी एक की नहीं, ठीक है? एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, आप जब पढ़ोगे यूपीएससी, राइट, तो जो पहली बात करनी है आपने, राइट, यू अवॉइड दिस पीपल, ठीक है? दे वुड मेक सम सेंटेंसेस, Rahul Gandhi would say something, Prime Minister Modi would say something, none of her business, right? Modi would say Nehru created all the problems for India, वो political statement है, उससे कोई नजर नहीं हमसे, ठीक है? हम पढ़ेंगे नेहरू के बारे में और मोदी के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? इनके पॉलिसीज क्या थे, इनके पॉलिसीज क्या है, इनके पॉलिसीज में गलतियां क्या हुई और कंट्रीब्यूशन क्या, इनके पॉलिसी में गलतियां क्या हुई, कंट्रीब्यूशन क्या, जो गलतियां हुई उसका क्रिटिसिज्म, और जिससे फायदा हुआ उसका अप्रिशिएशन, और बेस्ड ऑन दैट कंक्लूजन। बात खत्म। सो बायसेस मत रखो, ठीक है? अब जहां पे लिखा है ना वेरियस स्टेजेस, कौन से स्टेज से पता है क्या आपको? इसमें मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन फेज।
मैं जानता हूं कि इंडिया में देयर आर पीपल हु हेट गांधी, राइट, व्हिच इज एब्सोल्युटली अनफाउंडेड, बेसलेस, ठीक है। व्हेन यू डिस्कस हिस्ट्री, आपके जितने भी सवाल होंगे, मैं जानता हूं कि सवाल इधर ज्यादा आते हैं फ्रीडम स्टॉल के ऊपर, क्योंकि थोड़ा बहुत पता होता है, पहले अभी पता है नहीं, चुपचाप शुरू हो गया बैठ, राइट। बट आई एम टेलिंग यू, आप किसी के भी बारे में कोई एक मन में एक बायस मत लेके आए, राइट। गांधी अ, के बारे में अगर मैं एक बात कहूं, फॉरगेट अबाउट इंडिया, एंटायर वर्ल्ड हैज डिक्लेयर्ड गांधी एज मैन ऑफ मिलेनियम। दुनिया ने क्या बोला है गांधी के बारे में? मैन ऑफ मिलेनियम। मिलेनियम क्या होता है? 1000 ईयर्स। मिलेनियम इज 1000 ईयर्स। उस 1000 मतलब 1000 से लेकर के 2000 तक की बात कर रहे हैं वो लोग। ये जो 1000 साल है, उसमें ग्रेटेस्ट मैन वाज गांधी। ये कौन बोल रहा है? वेस्टर्न लोग। इसमें कौन कौन है पता है क्या आपको? अल्बर्ट आइंस्टाइन है, नेपोलियन है, कार्ल मार्क्स है, बहुत सारे फिलोसोफर्स, थिंकर्स, ग्रेट किंग्स, वॉरियर्स। आप ये बात समझ लो कि गांधी जब जुड़ जाता है ना इंडिया से, तो इंडिया का बड़प्पन बढ़ जाता है। बाहर जब जाओगे ना, इस तरह से देखते हैं लोग, गांधी इज इंडिया। आर यू गेटिंग दिस? ओके। इसका मतलब ये है कि हम गांधी के ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हो आप। यू कैन क्रिटिसाइज गांधी, बट फॉर्मेट वही होना चाहिए। गांधी ने क्या किया है, वर्क क्या है गांधी का, राइट। तो कंट्रीब्यूशन क्या है एंड पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म क्या है, राइट। उसी तरह से अब मैं दूसरा दूसरा एंड लेता हूं, सावरकर, ठीक है। सावरकर, इफ यू टॉक अबाउट, पीपल आर लाइक, देयर आर सम पीपल, सावरकर इज द ग्रेटेस्ट पर्सन, देयर आर अदर्स हु आर लाइक सावरकर वाज द विलन, माफी भी वो चल चल रहा है सब कुछ। ये दोनों बहुत एक्सट्रीम ओपिनियन है, बोथ दीज आर वेरी एक्सट्रीम ओपिनियन। जो माफी वीर बोलते हैं उनको मैं ये कहूंगा कि 10-11 साल वो इंसान इम्प्रिजनमेंट में था, देश के लिए मानना पड़ेगा आपको। हो सकता है कि उनकी थिंकिंग आपको अच्छी लगे या ना लगे। देयर आर पीपल हु डोंट लाइक गांधी थिंकिंग, but they should have courage to say that Gandhi worked for the country. There are people who don't like Savarkar thinking, but they should have courage to say that Savarkar suffered imprisonment for the sake of the country. तो यहाँ पे एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम बायसेस नहीं रखेंगे। हमारा सिंपल होगा कि क्या बोला है उन्होंने, उसमें गलतियां क्या थी और कंट्रीब्यूशन क्या। नो एक्सट्रीम ओपिनियंस हियर। ओके, सो वेरियस स्टेजेस ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड गांधीयन, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर्स, कंट्रीब्यूशन, सभी के बारे में बात करेंगे। राजा राम मोहन रॉय से लेकर मॉडरेट्स, सोशल रिफॉर्मर्स, मॉडरेट्स में दादा भाई नौरोजी, दिनशा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एम जी रानडे, राइट। देन एक्सट्रीमिस्ट में लाल बाल पाल, अरविंदो घोष, वी टॉक अबाउट, राइट। गांधीयन फिर में बहुत सारे लोग हैं, उनके गांधी, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सावरकर, revolutionaries, Bhagat Singh, Sukhdev, Rajguru, Chandrasekhar, Surya Sen, right? So we talk about all those contributors and contributions, right? Okay. Then ये हो गया freedom struggle का, इसमें सारे aspects हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, मैंने आपको बताया है क्या है। हाँ, उसमें दो तीन चीजें आती हैं। एक तो है स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज का एक मुद्दा है, राइट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, ये सब कुछ इसमें आता है। ये कंपोनेंट दिस इज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। क्या ये? मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। उसमें भी यूपीएससी ने क्लियरली बताया है फ्रॉम 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। दिस वुड बी डेल्ट विद बाय जवाद काजी सर, इसका एक अलग डिस्कशन होगा, ठीक है। सो वी वुड बी डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट्स। हमारे जो लेक्चर होंगे साल भर, हम ये पढ़ेंगे उसमें, एंड जवाद काजी सर वुड डील विद मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ सॉरी वर्ल्ड। ओके, दिस इज सिलेबस। नाउ सैंपल क्वेश्चंस। सिलेबस देखा हमने, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो प्रीलिम के क्वेश्चंस पहले मैंने एक ऐसे एक बनाया था पीपीटी, जो 2019 का जो लेटेस्ट प्रीलिम था वो बनाया। यू कैन टेक एनी एग्जामिनेशन, 2021 का ले लो, अभी जो रिसेंट है वो भी ले सकते हो। While taking questions from the 2019 preliminary examination, what I have done is I have picked up 2 questions from ancient, 2 questions from medieval, 2 questions from modern, सैंपल के लिए, है ना। ओके, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस है। क्या है? Which of the following is not a हड़प्पन साइट? आंसर ढूंढने की कोशिश मत करो,
सवाल किसके ऊपर आया, मतलब आपको साइट्स के ऊपर सवाल आ सकता है, ये होता है एनालिसिस। ठीक है, मैं जानता हूं कि कई सारी वेबसाइट्स है ऑनलाइन एनालिसिस के नाम पे आपको पाई चार्ट देते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर इतने सवाल, मिडिवल के ऊपर, अरे वो बदलता रहता है, ये एनालिसिस नहीं, इसको क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कितने सवाल आए, 12 सवाल है, नेक्स्ट ईयर 8 सवाल है। व्हाट इज दिस, ये फैक्ट एंड फिगर है, ये एनालिसिस नहीं है। एनालिसिस क्या होता है, क्वेश्चंस को देख करके ब्रॉडली कौन सी एरियाज है जहां पे सवाल है, किस टाइप के सवाल है, राइट, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। दैट हेल्प्स यू in terms of what is to be read and how are we supposed to prepare for the examination, right? Okay, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं, आप सवाल के नेचर को समझो, किस एरिया पे सवाल है वो समझो, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस। तो साइट के ऊपर सवाल है, देन यहाँ पे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग, 3 स्टेटमेंट दिए, क्या, डेइफिकेशन ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध, ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधिसत्व, इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। उसमें क्या लिखा है, छोड़ो, ये रिलीजन के ऊपर सवाल है, इसके ऊपर है, रिलीजन के ऊपर, और रिलीजन कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको? तो हमको कुछ हद तक रिलीजन भी पढ़ने पड़ेंगे। सो विच रिलीजन वी विल डिस्कस इन द क्लास 1? Hinduism, right? We will talk about Jainism, Buddhism, right? We will talk about Christianity, we will talk about Islam, we will talk about Sikhism. Christianity कब शुरुआत हुई इसकी? With Jesus Christ, right? First century ACE. So immediately within first century ACE, Christianity comes to India with Saint Thomas. तो अलग अलग रिलीजन की कुछ फिलोसॉफीज हम पढ़ेंगे, राइट? तो वो वंस वी डिस्कस दैट, इट इज वेरी इजी टू आंसर सच क्वेश्चंस, राइट? तो महायान बुद्धिज्म, अभी महायान क्या है, रिलीजन में अलग अलग सेक्ट बनते हैं। सेक्ट क्या होता है, पंथ, सेक्ट या कल्ट, संस्कृतियां बनती या फिर पंथ बनते हैं, राइट, है ना? अब वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी बीच में, आई थिंक विजन आईएएस की टीचर थी, पता नहीं किसी ने, एक टीचर ऑनलाइन, उन्होंने कहा कि भक्ति कल्ट, क्या बोला उन्होंने, भक्ति कल्ट, ठीक है? तो उसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी, कल्ट कैसे बोल सकते हो आप, ये वो। बात ये है कि लोग समझते नहीं है। डू यू नो द मीनिंग ऑफ कल्ट, सेक्ट? अगर नहीं पता तो चुप बैठो कम से कम, इजंट इट, है ना? बात ये, हिंदुइज्म इज अ ह्यूज टॉपिक जिसमें अलग अलग कल्ट है, कल्चर्स है। भक्ति कल्चर अलग है, राइट, शिवा का कल्चर अलग है, विष्णु का कल्चर अलग है, राइट, शक्ति का कल्चर अलग है। तो उसको कल्ट नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आर यू गेटिंग दिस? कि दिक्कत क्या है? Those people who don't understand it, they create the controversy unnecessarily. इसको कल्ट बोला जाता है। सेक्ट, पंथ, इसका एक यूनिक फॉलोशिप होता है, कुछ सिंबल्स होते हैं, राइट, बट दोज फॉल विद इन दी रिलीजन, एक रिलीजन के अंदर होता है। उसी तरह से बुद्धिज्म में 2 बने पहले, बाद में 3, वैसे 18 बने थे, उसको डिवाइड किया गया, हीनयान बुद्धिज्म एंड महायान बुद्धिज्म। एक और आया था बाद में, वज्रयान बुद्धिज्म। ये कल्ट है, उसके अंदर सेक्ट है। या फिर जैनिज्म में श्वेतांबर एंड दिगंबर। क्रिश्चियनिटी में कौन सा, प्रोटेस्टेंट कैथलिक। इस्लाम में शिया सुन्नी। ये सारे सेक्ट है, पंथ बोलते हैं उसको, एक धर्म के अंदर, राइट? सो हम ये भी पढ़ेंगे अलग अलग, जो उसका मतलब क्या है एंड ऑल दैट। तो इस तरह के जब सवाल आएंगे, विल बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दैट। मैंने आंसर किया क्या इसका? नहीं, मैं क्या बता रहा हूं आपको, किस टाइप के सवाल आते हैं, तो क्या पढ़ना चाहिए। सिलेबस में कहीं भी रिलीजन नहीं लिखा है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? ओके, नाउ मिडिवल के 2 क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स, द मोमेंट यू सी दिस, आपने ये नहीं बोलना सर मुगल तो हमारे नहीं है, हम क्यों पढ़े, आई बाइकॉट दिस क्वेश्चन। अरे एग्जाम देने आए हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हो, आईएएस किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होता, वो संविधान का कार्यकर्ता होता। यूपीएससी सवाल पूछ रही है, आंसर दे दो, बात खत्म। इसलिए मैंने कहा था कि जो बाहर चल रहा है सोशल मीडिया में, मूवीज में, तो उससे इन्फ्लुएंस मत होना प्लीज, राइट? सो मुगल एम्परर्स, उसमें से हु शिफ्टेड द एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट।
सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑन पेंटिंग. किसके ऊपर सवाल है? पेंटिंग के ऊपर. लेकिन सवाल किसको जोड़ करके पूछा है? किंग्स को, एम्परर्स को. तो पेंटिंग प्लस पॉलिटिकल हिस्ट्री. इसलिए फोकस ऑन कल्चर विद बेयर मिनिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर एस्पेक्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल. समझ में आया? सो ये जो मैंने ये जो पीपीटी बनाया है ना, ये कीपिंग इन व्यू व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव अपीयर्ड एंड व्हाट इज द सिलेबस. ठीक है. एक बिगिनर के लिए ये सब अंडरस्टैंड करना मुश्किल होता है रे. सो इट इज आवर वर्क, राइट, एज टीचर, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक्सपेक्टेशन क्या है, किस तरह के सवाल आए हैं, तो आपने कैसे प्रिपेयर करना है. ओके. नाउ दूसरा सवाल देखो, विद रेफरेंस टू मुगल इंडिया. अगेन दो सवाल आए थे. ठीक है. मुगल इंडिया, मुगल एम्पायर इंपॉर्टेंट एम्पायर है रे. इंडिया में आपको बताऊं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्पायर्स, एम्पायर मतलब बहुत बड़े होते हैं, राइट. उसमें मौर्य एम्पायर, द फर्स्ट बिगेस्ट एम्पायर, राइट. देन गुप्त एम्पायर, साउथ में चोल एम्पायर, राइट. देन दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर एंड देन ब्रिटिश. अब बीच में एक आता है मराठा एम्पायर. एंड द मोमेंट दैट नेम कम मराठा एम्पायर, हम जो मराठा के लोग, वी आर लाईक मराठी माणूस नाही का लगेच आपला पाणा येतो, हा म्हणजे हे का नाही सर असं वाटतं ना आपल्याला. पण थोडं थांबा, त्याची उत्तर देतो मी. ठीक है. आपल्याला वी आर सपोज टू स्टडी दैट, नो डाउट अबाउट इट, हम उसको स्टडी करने वाले हैं. लेकिन कई सारे हिस्टोरियन बोलते हैं कि एम्पायर था क्या. एम्पायर में क्या होता है? एम्परर होता है. आप बताओ मुझे, एम्परर कौन था? छत्रपति की पेशवा. इथून सुरुवात आहे रे प्रॉब्लेम्सची, कळतं का तुम्हाला? ठीक है. आप समझने की कोशिश करो. जब छत्रपति पावरफुल थे तो वो किंगडम था छोटा. जब बड़ा कब हुआ, सबसे बड़ा एक्सपेंशन कब हुआ? बाजीराव वन के अंडर. उसके बाद उसका बेटा, उसके बालाजी बाजीराव, उसके समय तो सबसे बड़ा होता. तब तक पेशवा इंपॉर्टेंट बन चुका. आर यू गेटिंग दिस? और उसके अलावा जब एम्पायर बना तो वो सिंगल एम्पायर था क्या? नहीं. बडोद्याचे कोण? गायकवाड. ठीक आहे. इंदोरचे होळकर, ग्वाल्हेरचे सिंधिया, बेरारचे भोसले. हे काय चाललंय? एक सिंगल एम्पायर नाही आहे का? आणि नंतर होळकरांनी अटॅक केला पुण्यावर. And that is why many people call it confederacy. काय म्हणतात त्याला? कॉन्फिडन्स, लूज फेडरेशन. एक आघाडी टाईप होतं ते, असं म्हणतात. काही लोक म्हणतात एम्पायर आहे. आलं लक्षात तुमच्या? वी आर गोइंग टू स्टडी इट, नो डाउट अबाउट दैट, बट देयर इज अ डिबेट ऑन इट. एंड मराठा एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ेंगे हम, राइट. तो देयर आर सम एम्पायर्स, तो वो इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर सवाल आए हैं. वी कैन नॉट रियली अवॉइड इट, राइट. ओके. ये यहाँ पे एक सवाल है मुगल इंडिया के कंसिडरेशन में. डिफरेंस पूछा है जागीरदार और जमींदार के बीच में. ये पढ़ो भी मत. सवाल किसके ऊपर आया है, किस टाइप का सवाल है, डिफरेंस पूछा किसमें जागीरदार जमींदार. अच्छा, मतलब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए. गैदर करो रे पॉइंट्स, राइट. मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कुछ सवाल, कल्चर के ऊपर मेजर फोकस, थोड़े से कुछ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. ओके. ये हो गया मिडिवल का. नाउ मॉडर्न. ठीक है. मॉडर्न का सिलेबस क्या बोलता है? सिग्निफिकेंट इवेंट्स, कॉन्ट्रीब्यूटर्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस, पर्सनैलिटीज, राइट. अब देखो, सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटीज हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशन दिए हैं, मैच द. बाकी कुछ मत देखो, उसको बाद में देखते हैं, टॉक अबाउट दैट. ये हर चीज हम डिस्कस करेंगे बाद में. शुरुआत जब करते हो, व्हेन यू बिगिन द जर्नी फॉर एनी सब्जेक्ट, डू नॉट ट्राई टू आंसर करने जाओगे ना तो डिप्रेस हो जाओगे. मेरे कुछ नहीं आता मुझे. हाँ, तो दैट इज फाइन, इसीलिए तो आए हो यहाँ पे. ओवर द पीरियड ऑफ 1 year वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. पढ़ेंगे सब कुछ. राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि नेचर क्या है, किस तरह के सवाल आए हैं, कौन से एरियाज कवर हो. राइट. लुक एट दिस. एक मूवमेंट के ऊपर सवाल है, स्वदेशी मूवमेंट. उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सा सही है पूछा है. सो दिस इज द नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, राइट. जहां पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, राइट. और बहुत बार ना आप लॉजिक लगा करके आंसर दे सकते हो. 2021 में एक सवाल आया था ऐसे ही, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट. तो स्टेटमेंट दिए थे तीन या चार. उसमें से एक स्टेटमेंट क्या लिखा था पता है क्या उसमें? दैट तिमूर्स इन्वेजन. तिमूर जानते हो ना? तिमूर, तैमूर, थैंक्स टू करीना कपूर, एवरीबॉडी नोज हिम नाउ, राइट. तिमूर का इन्वेजन हुआ था. ठीक है.
तो उसके ऊपर सवाल आया था, तिमुस इन्वेजन हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ये भी सभी को पता है, तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना? ओके। आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज वेरी स्ट्रांग, और जब इंडिया में बहुत पावरफुल किंग होता है ना, तो इन्वेजन्स नहीं होते हैं, वो उसको थोपा जाता है बाहर ही, रिपल्स किया जाता है। इसलिए आपको इतना अंडरस्टैंडिंग है, मौर्य एम्पायर है, कोई बड़ा इन्वेजन नहीं होगा, गुप्त एम्पायर है, कोई बड़ा इन्वेजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, लेकिन दिल्ली सल्तनत ऐसा एम्पायर था, उसमें अलग अलग डायनेस्टीज हैं। स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खलजी डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद लोधी। तो स्लेव डायनेस्टी स्ट्रांग बना, डिक्लाइन हुआ, खलजी स्ट्रांग बना, डिक्लाइन हुआ, उसके बाद तुगलक स्ट्रांग हुआ, डिक्लाइन बना, ऐसा है रे वो। तो डिक्लाइनिंग फेज में इन्वेजन हुए हैं, लेकिन एक तुगलक का बहुत स्ट्रांग टाइम था। यहाँ पे तिमुर का इन्वेजन पॉसिबल नहीं है। आपको पता भी नहीं है ना कि हुआ है कि नहीं, यू स्टेटेड इनकरेक्ट लॉजिक यूज करके। जो लोग ये सोचते हैं कि हिस्ट्री में लॉजिक नहीं है और रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब आपने कभी समझा ही नहीं हिस्ट्री को। मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट कौन सा बताओ मुझे? लॉजिकल सब्जेक्ट रे मोस्ट, मैथमेटिक्स मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट, साइंस। ठीक है, आपको पता है कि कभी कभी साइंस मैथमेटिक्स भी गलत जा सकता है, हिस्ट्री नहीं। क्यों? कई सारे जो इक्वेशंस हैं फिजिक्स के बदल जाएंगे अगर, अभी एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर नाम का, यूरोप में, वो सक्सेसफुल हुआ तो। आर यू गेटिंग दिस? ग्रेविटेशनल वेव के बारे में सुना है क्या आपने कभी? वो पहले किसी को पता ही नहीं था। चेंज होता है साइंस, मैथमेटिक्स भी चेंज होता है कई बार, लेकिन जो हिस्ट्री हुआ है वो चेंज नहीं होता, वो जैसा हुआ है, बात खत्म। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, आपने पहले 10वीं पास किया था कि 12वीं? कैसे पता है आपको? रट्टा मारा था सुबह 5 बजे को उठ के, मैंने पहले 10वीं पास किया था। आपने जिया है, राइट? आप क्या बोलोगे, कैसे मतलब? पहले 10वीं करेगा ना। ह्यूमन लाइफ सबसे ज्यादा लॉजिकल है रे, और ये ह्यूमन लाइफ का अकाउंट है, इज द अकाउंट ऑफ ह्यूमन, उसमें लॉजिक है। तो दोज हु कंसीडर हिस्ट्री एज इलॉजिकल, रट्टा मारना पड़ते हैं, और एब्सोल्युटली रॉन्ग। मतलब आपको पता ही नहीं व्हाट इज हिस्ट्री। तो इस लॉजिक अप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हैं। आई कैन गो ऑन गिविंग एग्जांपल्स, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा रुक जाओ, मैंने पढ़ाई नहीं की है। व्हेन आई वुड डिस्कस हिस्ट्री थ्रू आउट द ईयर, प्रीलिम के, मेंस के कुछ कुछ क्वेश्चंस लेकर के मैं आपको बताऊं, एक टॉपिक मैंने पढ़ा है, एक सवाल लेकर के आपको बताऊंगा कि हाँ, आपने जो पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई द लॉजिक। इफ देयर इज अ क्वेश्चन, उसका प्राइमा फेस, जब पढ़ते हो तो आंसर पता नहीं है, आप क्या करें, थोड़ा सा और पढ़ो और लॉजिक अप्लाई करने की कोशिश करो, आंसर मिल जाए। आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज पॉसिबल, राइट? ओके, सो दैट इज हाउ वी आर सपोज टू स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, देखो, देयर इज नो पर्सन हु कैन रिमेंबर एवरीथिंग, एंड आई नो दैट दिस इज क्वाइट अ लार्ज चंक ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन का चंक है, राइट? हाउ टू रिमेंबर इट? बेस्ट आंसर इज लॉजिक, एंड आई वुड डू दैट। जब मैं हर टाइम पीरियड एक्सप्लेन करूंगा, यू वुड अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें हैं, उसको कैसे यूज करना है, अप्लाई कैसे करना है, उसके बेस पे एजुकेटेड गेस किया जा सकता है क्या। सो ऑल दिस थिंग्स वी विल लर्न इन द प्रोसेस, राइट? सो इस तरह के सवाल आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स, एंड यू शुड नो हाउ टू आंसर देम। ये हो गया प्रीलिम का। मेंस एग्जामिनेशन, आप कोई भी मेंस उठा लो, जो मैंने 2019 में बनाया था, तो फिर पीपीटी, तो वो क्वेश्चन है। यू सी हियर, हाईलाइट सेंट्रल एशियन ग्रीको बैक्टीरियल एलिमेंट्स इन गांधार आर्ट। एंशियंट टाइम में 3 स्कल्पचर के आर्ट फॉर्म्स काफी फेमस, गांधार, अमरावती एंड मथुरा। गांधार, अमरावती एंड मथुरा। गांधार पे ग्रीको बैक्टीरियन इन्फ्लुएंस था। ग्रीक रे, ग्रीक लोग, ये कहां से आया एंशियंट टाइम में? ग्रीस तो कहाँ है, यूरोप में है। वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं रे, एंशियंट है वो। वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री आपको मॉडर्न से है। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब क्या, कहां से आया होगा? वर्ल्ड हिस्ट्री का पता चल कहां से आया होगा। अलेक्जेंडर्स इन्वेजन, सिकंदर, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो ग्रीस से निकला था, इंडिया तक आया था वो। वी नो दिस, पंजाब तक आया था।
जीतते जीतते। वो जो वापस चला गया तो कई सारे ग्रीक लोग यहाँ पे रुक गए थे, उनको बाद में इंडो ग्रीक बोला गया। क्या बोला गया? इंडो ग्रीक। कहाँ रुके पता है क्या वो? हाँ, हिंदू कुश माउंटेन के उस साइड में। दैट रीजन इज कॉल्ड बैक्ट्रिया। तो ग्रीको बैक्ट्रियन, वो ग्रीक जो बैक्ट्रिया में रुके थे, उनका इन्फ्लुएंस गांधार आर्ट के ऊपर। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होना चाहिए। सवाल कल्चर पे है, यू शुड नो लिटिल बिट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब आप समझ सकते हो कि इसमें क्या एलिमेंट्स है, उसका लिस्ट है मेरे पास नोट में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बट आंसर लिखने के लिए जो नोट्स है उतना काफी नहीं, आपने थोड़ा सोचना चाहिए कैसे लिखना है। आंसर राइटिंग इज एक्सप्रेशन। मैंने आपको नोट में दे दिया, ये 3-4 पॉइंट्स है जो ग्रीक रोमन इन्फ्लुएंस है गांधार आर्ट में। आपने इधर सीधा पॉइंट्स लिख दिए, मेक्स नो सेंस। आपने ठीक से लिखना चाहिए, हाईलाइट बोला है उसको ठीक से हाईलाइट करो। इंट्रोडक्शन में लिखो, after Alexander's invasion many Greeks stayed back in Indian subcontinent and they carried Greco-Roman elements with them which get reflected in Gandhar art. Introduction, उसके बाद फिर 1 2 3 4 पॉइंट्स। जो इंसान सीधा 4 पॉइंट लिखेगा और जो इंसान इंट्रोडक्शन लिखेगा, आप किसको मार्क दोगे? आप बताओ, छोड़ो यूपीएससी। एक एडिशनल मार्क कौन अर्न करेगा? ये अल्टीमेटली कंपटीशन है हर मार्क के लिए यहाँ पे। तो हाउ डू यू ऐड दैट एक्स्ट्रा एलिमेंट व्हिच वुड अर्न यू 1 मार्क एक्स्ट्रा, हाफ मार्क एक्स्ट्रा, व्हिच मैटर्स अ लॉट इन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो उस तरह से पढ़ना जरूरी है चीजों को, राइट। दूसरा क्वेश्चन देखो, छोड़ो कि पॉइंट्स कौन से, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। मैं आपको सीधा फोटो दिखा करके बताऊंगा कि हाँ ये एलिमेंट्स ग्रीक लोगों ने क्या क्या इमेजिन किया था। उनके स्कल्पचर में क्या, स्कल्पचर जानते हो ना, छिन्नी हाथोड़ा लेकर के जो किया जाता है उसको बोला जाता है स्कल्पचर। स्टोन का कुछ मूर्ति बनता है स्कल्पचर, मेटल की मूर्ति बनती है स्कल्पचर। जो स्टोन का बना हुआ है स्टोन स्कल्पचर, जो मेटल का बना हुआ है मेटल स्कल्पचर। शिल्प बोलते हैं ना उसको, कोई मूर्ति। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, एग्जामिन द लिंकेजेस बिटवीन 19th century's Indian Renaissance and the emergence of national identity। एक आइडेंटिटी बनता है नेशन का वो, और हमारा जो रिनाइसेंस हुआ था, रिनाइसेंस क्या है? नथिंग बट सोशल रिफॉर्म्स। राजा राम मोहन रॉय से लेकर के अम्बेडकर तक जो भी सोशल रिफॉर्म के अलग अलग लोग थे, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्होंने जो थिंकिंग रखी, उसका एक इन्फ्लुएंस नेशनल लीडर्स के ऊपर था। तो हर एक की अलग कॉन्सेप्ट थी नेशनल आइडेंटिटी की। इंडिया में कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं थी। मॉडरेट्स जो थे उनकी अलग कॉन्सेप्ट थी, एक्सट्रीमिस्ट लीडर की अलग कॉन्सेप्ट थी, गांधीयन कॉन्सेप्ट वाज डिफरेंट, बोस की कॉन्सेप्ट अलग थी, सावरकर्स कॉन्सेप्ट वाज डिफरेंट, भगत सिंह कॉन्सेप्ट वाज डिफरेंट। तो इनके ऊपर किसका इन्फ्लुएंस था सोशल रिफॉर्मर्स में से? उसका लिंकेज पूछा है। उसी तरह से पढ़ेंगे। 57 का अपराइजिंग was culmination of recurrent big small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate। 57 का रिवोल्ट सभी को पता होगा, लेकिन उसके पहले जो 100 साल का जो कंपनी रूल है, उसमें कोई भी रिवोल्ट नहीं हुआ है क्या? हुआ है, काफी सारे हुए लोकल, राइट। ग्रोवर का बुक है, ग्रोवर का, राइट, उसमें एक चैप्टर है पूरा इसके ऊपर, और कई सारे रिवोल्ट वहां पे दिखा। उसमें 3-4 भी एग्जांपल लेकर के आप लिखोगे, दैट इज गुड इनफ। समझ में आ रहा है? Then many voices had strengthened and enriched nationalist movement during Gandhian phase। Elaborate। क्या बोला गया? गांधीयन फेज में कई सारे लोग थे जिनके वॉइसेस एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा आपको, एनरिच किया है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो वर्ड क्या यूज किया, गांधीयन फेज। आप उसके आगे रिवोल्ट नहीं कर सकते, आपने गांधीयन फेज क्यों बोला? आपने आंसर लिखना है। होता है माइंड योर ओन बिजनेस, अपना काम करो, निकलो, है ना। लोग फालतू की डिबेट में चले जाते हैं, देयर इज नो नीड। यहाँ पे आपको ऐसे सवाल आएंगे तो आंसर लिख करके, मार्क्स लेकर के मसूरी पहुंचना है। इधर कांग्रेस बीजेपी नहीं खेलना है, और जो लोग ये करते हैं ना वो कहीं नहीं जाते, यहीं पे रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। और कार्यकर्ता को क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आपके नेता लोग गुवाहाटी में है, होटल में ऐश चल रहा है उनका, राइट। और जो कार्यकर्ता उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, मैं उद्धव की साइड में जाऊं या उनके मिनिस्टर की साइड में जाऊं। और ये हर पार्टी का हाल है, किसी एक का नहीं। सो यू हैव चोजन द राइट पाथ, यू अपना करियर बनाओ। फिर ये प्राइम मिनिस्टर के साथ लेकर के सारे जो लोग हैं,
आपके सामने खड़े होकर के एप्लीकेशन देंगे, किसका? इलेक्शन का। जानते हो ना, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है? चीफ रिटर्निंग ऑफिसर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, कलेक्टर। उसको एप्लीकेशन देते हैं। अभी देखा होगा आपने फोटो, प्रेसिडेंट का जो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, वो चुनाव आयोग के पास जाएगा, लेकिन जो एमपीज हैं वो सारे उस डिस्ट्रिक्ट में जो कलेक्टर है उसके पास एप्लीकेशन देते हैं। एक ऑर्डिनरी इंसान के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी करियर का पाथ यही है रे। तो अगर पाना है तो उसके ऊपर फोकस करो, जो पूछा है उसका आंसर दे दो, बाकी छोड़ो। राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे वॉइसेस है। कौन से वॉइसेस है? मैंने आपको बोला गांधीयन वॉइस एक खुद है, नो डाउट अबाउट दैट। राइट। उसके बाद स्वराज पार्टी, सीआर दास मोतीलाल नेहरू स्टार्टेड दैट स्वराज पार्टी। राइट। उसके बाद यू टॉक अबाउट लाला लाजपत राय, हिज अपोजिशन टू साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, रिवोल्यूशनरीज, उसमें एचआरए एचएसआरए, उसमें कई सारे लोग हैं। राइट। यू टॉक अबाउट सूर्य सेन, उन्होंने जो काम किया राइट गांधीयन फेज में। यू टॉक अबाउट आईएनए, सुभाष चंद्र बोस, राइट, उनका एक अलग वॉइस था। यू टॉक अबाउट सोशल रिफॉर्मर्स ड्यूरिंग दिस टाइम, उसमें रामास्वामी नायकर आएंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आएंगे। यू टॉक अबाउट दोज हु वर्क फॉर द विमेन, विमेन्स एसोसिएशंस, राइट। तो कई सारे वॉइसेस है वहां पे। यू हैव टू राइट अबाउट दैट। आप एक बार हिस्ट्री ठीक से पढ़ लो, क्वेश्चन कोई भी आने दो, यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। राइट। Then assess the role of British imperial power in complicating process of transfer of power during 1940s. 1940s में क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर चल रहा था और इंडियन लीडर्स वर लाइक वी वांट इंडिपेंडेंस। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टॉकिंग टू अस, निगोशिएशंस हुए, टॉक्स हुए, उसमें क्रिप्स प्रपोजल, कैबिनेट डेलीगेशन, राइट, सीआर फॉर्मूला, वेवेल प्लान, माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान जो इंप्लीमेंट हुआ तो इंडिपेंडेंस मिला पार्टीशन के साथ। राइट। तो ये जो प्रोसेस था निगोशिएशन का, इसने ट्रांसफर ऑफ पावर, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पावर हमारे हाथ में दे दिया, ट्रांसफर ऑफ पावर, उसको कॉम्प्लिकेट किया है क्या? और अगर किया है उसका असेसमेंट दे दो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस तरह के सवाल आप स्पेक्ट्रम के बुक के आधार पे नहीं दे सकते। मैं जानता हूं कि कई सारे लोग दे ओनली रीड स्पेक्ट्रम, देयर आर सम लकी पीपल हु गॉट थ्रू। आप अगर लक के बेसिस पे इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट। स्पेक्ट्रम नोट्स टाइप है, मैं भी आपको एक नोट्स दूंगा, एक नोट दूंगा, बुकलेट, लेकिन आई इंसिस्ट दैट यू रीड द बुक्स। यहाँ पे आंसर लिखना है आपको, मियरली नोट्स लेकर के उस पॉइंट्स को इधर डाल दिया तो आंसर नहीं बनता, आपको लिखना पड़ेगा। और लिखना जो है पढ़ने के बाद आता है, इसलिए डू नॉट हेजिटेट, रीड बुक्स। इतना बड़ा बुक है सर, मैं कैसे पढ़ूं? पोस्ट बहुत बड़ा चाहिए आपको, आईएएस, बुक छोटा चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता। और वो स्पेक्ट्रम भी छोटा बुक नहीं है, और फिर भी काफी शॉर्ट है। और ये छोड़ो, मैं एक क्वेश्चन बना के आपको देता हूँ, घर में जाकर के स्पेक्ट्रम का बुक सामने रख करके उसका आंसर लिख के दिखाओ मुझे, ओपन चैलेंज। और मैं ये स्पेक्ट्रम के बारे में नहीं कह रहा हूं, मेरे नोट्स के बारे में भी कह रहा हूं। नोट्स सामने रखो, आंसर करने की कोशिश करो। नोट्स क्या होता है? रिवाइज करने के लिए रे, कि शॉर्ट में रिवाइज होना चाहिए। बुक पढ़ा होगा ना तो रिवीजन मेक सेंस, बुक ही नहीं पढ़ा तो इट मेक्स नो सेंस। स्पेक्ट्रम हो, नोट्स हो, उससे क्या होता है, आपको पॉइंट्स मिलते हैं, लिखो है कैसे, पॉइंट्स मिले हैं, लेकिन आपको पैराग्राफ में लिखना है। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कांग्रेस एज ए सेफ्टी वॉल, क्रिटिकली एग्जाम में 15 मार्कर लिख के आओ सामने, ओपन बुक टेस्ट। आई एम नॉट अगेंस्ट स्पेक्ट्रम, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, दोज हु ओनली रिलाई ऑन स्पेक्ट्रम दे आर इन ट्रबल। और कई बार लोग हो जाते हैं कैसे, पेपर 1 में कम मार्क है लेकिन पेपर 2, 3 में अच्छा है, तो ठीक है ना, बट आपका पेपर 1 वीक था, ये एंड तक रहेगा, तो व्हाई वांट टू प्ले लाइक दिस? ऐसा क्यों करना है? हर सब्जेक्ट को स्ट्रांग बनाओ ना। फर्स्ट आना चाहते हो कि 600 रैंक लाना है आपको, बताओ। तो फोकस करो ठीक से, ठीक है। तो ऐसे कई सारे सवाल। अब ये हो गए एरियाज की बात कर रहा था मैं। नाउ लुक एट अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एज फार एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज कंसर्न। अलग अलग कीवर्ड्स हैं, देयर आर डिफरेंट कीवर्ड्स। आपको एक बुकलेट दिया जाएगा छोटा सा, उसमें
जो कीवर्ड्स है ना उसका मतलब, और आपने क्या लिखना है, एग्जामिन, क्रिटिकली एग्जामिन, इवेल्युएट, इलेबरेट, असेस, ठीक है, उसमें क्या लिखना है एग्जैक्टली, कंटेंट वही होता है, ये फ्लेवर है। असेस बोला असेसमेंट देना पड़ेगा, डिस्कस बोला है डिस्कशन देना पड़ेगा, एग्जामिन बोला एग्जामिनेशन देना पड़ेगा उस चीज का, इलेबरेट बोला है तो इलेबरेट करके लिखना पड़ेगा। तो हर वर्ड का एक मतलब होता है, और उसी तरह का फ्लेवर आपके आंसर में होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? ओके, तो ये दो एस्पेक्ट्स है, एक कीवर्ड क्या है और दूसरा एरिया कौन सा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऐसे ही करो आप। कैसे करो? कोई भी सवाल देखा आपने, किस एरिया पे सवाल आया है, सवाल क्या पूछ रहा है, और कीवर्ड क्या है। सो एरिया, एग्जैक्ट क्वेश्चन एंड कीवर्ड। ये बहुत बड़ा सवाल है, मैंने बहुत शॉर्ट करके दिखा है इसको, काफी बड़ा सवाल, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये वो सवाल है, मैं पूरा सवाल, दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया, संगम लिटरेचर पोर्ट्रेट सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इट्स टाइम विथ रिमार्केबल विविडनेस। कमेंट। इतना बड़ा सवाल, मैंने क्या लिखा, दैट्स इट। ये सब कुछ लिखोगे ना तो पूरा वॉल लगेगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपल चीज है, कीवर्ड्स देखो, राइट, और ये टेबल दिख रहा है आपको, इस साइड में ईयर है और इधर क्वेश्चन नंबर। मेंस के लिए 2013 से आप ये करोगे, कहां से करोगे, बिकॉज 2013 के पहले फॉर्मेट वाज डिफरेंट था। 2013 ऑनवर्ड्स किसी भी सब्जेक्ट के लिए यू कैन डू दिस, किसी भी सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज करो, तो आपके सामने पूरा एक व्यू रहेगा, क्या क्या सवाल आया, क्या पूछा गया, डिस्कस, कमेंट, हाईलाइट, एरिया कौन सा है। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो एक एक टेबल में आपको सब कुछ दिखेगा, दैट गिव्स यू आइडिया कि हाँ कैसे सवाल आता है। ठीक है, ओके, नाउ अप्रोच, आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट, हाउ टू स्टडी, क्विकली गो थ्रू इट। सी, पहले अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ इंडियन हिस्ट्री। व्हेन शी आस्क्ड मी कि लेटर वैदिक क्या है, पोस्ट वैदिक, मैंने आपको जो बताया ना इमीडिएटली, स्टोन एज, राइट, उसके बाद आईबीसी, वैदिक एज, पोस्ट वैदिक, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्त, पोस्ट गुप्त, मैं जानता हूं स्कोप क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है तो ये पढ़ना है, एक क्लैरिटी आती है ना सामने, क्या ये पढ़ना है। अब उसके अंदर है क्या क्या पढ़ना है, वो सेकंड सवाल है। सो पहले स्कोप को समझो, उस फ्लो को समझो हिस्ट्री की। जब फ्लो समझोगे ना तो सवाल समझना आसान होगा। देखो, एक सवाल लिया है मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी was one of the oldest universities of the world with which were associated number of renowned learned personalities, different discipline के. Its strategic location caused its flame to flourish. But fame to flourish. But unlike Nalanda, it is not considered as university in the modern sense. Discuss. कई सारे लोग समझ ही नहीं पाए सवाल क्या पूछा, ठीक है, और कुछ लोगों ने कुछ कुछ लिखा है वेग तरीके से। मैं आपको बताऊं क्या, सबसे पहली चीज जो आप अपने जानना चाहिए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी ये दो अलग अलग काल में है, राइट। तक्षशिला इज इन प्री मौर्य एंड मौर्य पीरियड में मोस्टली, नालंदा पोस्ट मौर्य एंड गुप्त पीरियड में। और पता है क्या, यहां से आते आते बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मेडिसिन में चरक सुश्रुत, मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट, राइट, वेटरनरी साइंस में कई सारे लोगों ने लिखा है, मेटलर्जी का स्टडी हुआ है, समझ में आ रहा है आपको, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, तो कई सारे मॉडर्न सब्जेक्ट बाद में आए रे तक्षशिला के बाद, उससे फिर करिकुलम बना, उस तरह का पढ़ाना शुरू हो गया। सो नालंदा लुक्स मोर लाइक मॉडर्न एज कंपेयर टू तक्षशिला। तो आपको अगर फ्लो पता है क्या क्या हुआ है हर पीरियड में, आप आंसर लिख पाओगे, अदरवाइज नहीं। गेटिंग दिस? इसलिए स्कोप और आउटलाइन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? आउटलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक से। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मेरा टेक अप द नेक्स्ट लेक्चर ये होगा, इसमें पूरा आउटलाइन दूंगा मैं, एंशिएंट टू मॉडर्न। ओके, एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री में बोल चुका हूं, फोकस ऑन कल्चरल एस्पेक्ट्स विद फेयरली गुड आइडिया ऑफ पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। उसका ये एग्जांपल है। इसमें क्या पूछा है पता है क्या आपको? साउथ इंडिया का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस पूछा है।
राइट। और मेंस का सिलेबस क्या बोलता है? salient aspects of art forms, literature, architecture from ancient to modern. आप ढोलपुर हाउस जाके यूपीएससी को पूछ नहीं सकते। आपने तो कल्चर बोला था, आपने यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक कंडीशन पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस है। यूपीएससी क्या बोलेगा? नहीं, वो सिलेबस के ऊपर ही है, लेकिन पूछा ये है। एंड बाय द वे देयर इज नथिंग लाइक आउट ऑफ सिलेबस इन यूपीएससी। एक तो यूपीएससी आपको जवाब भी नहीं देगा। तो बात ये है, सिलेबस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको बताते हैं कि पढ़ना क्या है। So focus on culture with fairly good idea of social, political, economic, administrative aspects, right? Okay. Modern history में equal emphasis on all aspects, political, social, economic and culture. ये अप्रोच होना चाहिए आपका हिस्ट्री की तीन कंपोनेंट्स को लेकर के, राइट? ओके। नाउ सोर्सेस, द लास्ट पार्ट। क्या क्या इसमें? सबसे पहले एनसीईआरटी बुक्स। मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक से समझो, बार बार नहीं, ठीक है? बहुत बार लोग बोलते हैं सब ओल्ड पढ़ो कि न्यू पढ़ो, ओल्ड पढ़ो कि न्यू पढ़ो। जब 6 महीने तक लोग ये पूछते हैं ना, ओल्ड पढ़ो कि न्यू पढ़ो, मेरा आंसर ये होता है कि पहले पढ़ो, कुछ तो पढ़, ओल्ड तो पढ़, न्यू तो पढ़। 6 महीने हो गए वही पूछ रहा है, राइट? है ना? तो आप अभी समझो, ओल्ड एनसीईआरटी पहले पढ़ना है, न्यू एनसीईआरटी बाद में। एंड वॉट एवर आई टेल हियर, मैं आपको जो भी बोलता हूँ उसके पीछे लॉजिक रहेगा। अभी तो आप समझ गए होंगे। द एंटायर कंटेंट ऑफ द पीपीटी वाज बेस्ड ऑन एग्जाम का रिक्वायरमेंट, राइट? तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, व्हाई ओल्ड फर्स्ट, राइट? न्यू एनसीईआरटी थीम बेस्ड है, इकोनॉमिक थीम, सोशल थीम, पॉलिटिकल थीम। उसमें कंफ्यूजन होता है इंसान। उसमें बोला जाएगा इंडियन इकोनॉमी वाज पेस्टोरल या फिर नोमैडिक ड्यूरिंग स्टोन एज, एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन न्यूलिथिक पीरियड। तो आपको पता भी है कि ये किस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। आपको जो पता होता है कि पहले पैलियोलिथिक, बाद में मेसो, बाद में न्यू, बाद में कैल्को, है ना? ये आप एक बार जान गए ना तो ये समझना आसान होता है, थीम बेस्ड जो जंप कर रहा है एक पीरियड से दूसरे पीरियड में। इसीलिए ओल्ड एनसीईआरटी सिक्वेंशियल है, सिक्वेंशियल। एक बार वो पढ़ लिया ना तो ये समझना आसान होता है। वैसे भी एनसीईआरटी बुक्स आर टू बी रेड एटलीस्ट ट्वाइस। सो यू रीड हिस्ट्री फ्रॉम ओल्ड एनसीईआरटी वंस एंड देन न्यू एनसीईआरटी वंस, दैट शुड बी इनफ। समझ में आया? ओके। लोग बोलते हैं तमिलनाडु एनसीईआरटी। तमिलनाडु एनसीईआरटी हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड की बुक्स हो या फिर किसी भी स्टेट, जनरली जो स्टेट के बुक्स होते हैं ना, दे फोकस ऑन दैट स्टेट्स कल्चर। आर यू गेटिंग दिस? आई फुली अंडरस्टैंड। होता क्या पता है क्या, साउथ के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए जब साउथ के ऊपर सवाल आता है पेपर कहां से आया, इसलिए तमिलनाडु एनसीईआरटी अचानक से लोगों को लग रहा है कि इंपॉर्टेंट, एंड दे आर स्किपिंग दिस। मतलब आप तमिलनाडु के लिए पूरा इंडिया स्किप कर रहे हैं, इसे मत करो। पहले ये एनसीईआरटी पढ़ो, आपको लगता है बाद में कि हाँ थोड़ा सा उधर से भी कुछ ले लेता हूं मैं, तो एडिशनल रीडिंग, उसको क्या बोलेंगे? एडिशनल रीडिंग। बट बेसिक ये है। ओके। नाउ जब मैं व्हेन आई से ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें 3 एनसीईआरटीज हैं। एंशिएंट बाय आर.एस. शर्मा, मिडिवल बाय सतीश चंद्र एंड मॉडर्न बाय बिपिन चंद्र। समझ में आ रहा है? आई एम टेलिंग यू, ये तीनों हिस्टोरियंस है। तीनों क्या है? हाँ, इनके अपने बड़े बड़े बुक्स है, वो मत लेना। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि वो एनसीईआरटी का बुक है कि बड़ा बुक है? एनसीईआरटी की बुक पे ये लिखा होता है, टेक्स्ट बुक। सीधा बोलो शॉपकीपर को कि नहीं, मुझे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक चाहिए, आर.एस. शर्मा का, सतीश चंद्र का और बिपिन चंद्र का। तो एक एक बुक मिलेगा आपको। कई सारे लोगों ने किया है, जाकर के रेफरेंस बुक लेके आते हो। आपका हिस्ट्री ऑप्शनल तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। मैंने तो कुछ स्टूडेंट को एडवाइस किया, अब तू लेके आए ना, वो किसी को बेच दे जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल। तो यू ओनली बाय दोज ओल्ड एनसीईआरटी ऑफ दिस ऑथर्स, बट जहाँ पे टेक्स्ट बुक लिखा हुआ, वो 3 ही बुक है। ओल्ड एनसीईआरटी बहुत सारे, लेकिन ये 3 ही लेके आओ। और ये आप 6 to 12 पढ़ सकते हो। हाँ, कई सारे लोग होते हैं उनको कुछ याद नहीं होता, कुछ पता नहीं होता 6th में क्या है, 7th में क्या। दे कैन स्टार्ट फ्रॉम 6th। अगर आपको लगता है कि 6th 7th बहुत सिंपल है सर, आई नो इट, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 8th और 9th। ये आप पे डिपेंड करता है। हर इंसान ने देखना है कि वेयर आई स्टैंड। इफ आई डोंट नो एनीथिंग, यू स्टार्ट विद 6th। इफ यू नो लिटिल बिट थिंग्स, ये इजी लग रहा है, आई कैन गो टू द नेक्स्ट स्टैंडर्ड, यू गो टू नेक्स्ट स्टैंडर्ड।
एंड हाउ यू कैन डू दिस, बुक स्टोर में जाओ, 6 का बुक ले लो, इंडेक्स देखो, थोड़ा गो थ्रू करो, यू कैन अंडरस्टैंड ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। आर यू गेटिंग दिस? तो फ्रीडम आपके पास है, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो 6 to 12, राइट? उसके बाद आपको ये बुक पढ़ना है बीएल ग्रोवर का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, राइट? एंड देन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र। ये 2 बुक क्यों पढ़ने हैं मॉडर्न के लिए? उसका रीजन है, बिपिन चंद्र स्टार्ट फ्रॉम 1857, तो जो कंपनी रूल है 1757 से लेकर ये कहां से मिलेगा आपको? एक ग्रोवर के बुक से मिलेगा। तो ग्रोवर का बुक शुरू होता है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, वहां से लेकर के रिवोल्ट तक आप कौन सी बुक से पढ़ोगे? ग्रोवर। वहां पे आगे मत पढ़ना हो बुक, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल बहुत शॉर्ट में दिया है, राइट? तो उसके लिए आप यहां आ जाओ, बिपिन चंद्र। सो ग्रोवर फ्रॉम डिक्लाइन मुगल एम्पायर टू रिवोल्ट का चैप्टर, उसके बाद फिर बिपिन चंद्र ऑनवर्ड्स। समझ में आया? ओके। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बाय बिपिन चंद्र, और ये फिर से बड़ा बुक है ना, 2 बड़े बड़े बुक, यू आर लाइक अंडर प्रेशर। अब यहाँ पे मैं वो लॉजिक एक्सेप्ट करूंगा। कौन सा लॉजिक? सर एक आध सवाल आता है उसके लिए इतना बड़ा बुक पढ़ना, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। लेकिन आप अगर वो लॉजिक इधर लगा रहे हो ना, कहाँ पे? यहाँ पे, तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि आप प्रीलिम में और मेंस में कितने सवाल आते देखो, उसके बाद पता चलेगा, राइट? यहाँ मत लगाओ वो लॉजिक, ये बुक पढ़ो। और इसके लिए योर ऑल्टरनेटिव, अगर ये नहीं पढ़ना है, ऑल्टरनेटिव वुड बी क्लास स्टडी मटेरियल, ठीक है? सो डोंट वरी, पढ़ना है अच्छी बात है, नहीं पढ़ना यू कैन यूज दिस, ओके, फॉर दैट 1 or 2 क्वेश्चन व्हिच कम, एंड समटाइम्स देयर इज नो क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो ठीक है, वहां पे आया एक्सेप्ट, बट ये मत आप स्किप मत करना, ठीक है? चलिए, कल्चर के लिए ये 2 बुक्स हैं, नितिन सिंघानिया एंड बलियान, ये लेटेस्ट है, सो आई वुड रिकमेंड दिस, ठीक है? ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन का यस बलियान का बुक, एंड दिस पर्सन अगेन उनका क्लास है दिल्ली में, तो उन्होंने लिखा है, लेटेस्ट है। बट कल्चर के बुक्स का मेजर प्रॉब्लम विद कल्चर के बुक इज, वो लोग टुकड़ों में कल्चर दे रहे हैं आपको, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर फेंकते हैं आपके ऊपर, ये स्कल्पचर ले लो, आर्किटेक्चर, डांस, अरे लेकिन वो हुआ कहाँ है? हिस्टोरिकल फ्लो में है क्या? नहीं। तो यहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, और जो मैं आपको क्लास मटेरियल दूंगा ना, वो हिस्ट्री के फ्लो में कल्चर डाला है मैंने, ठीक है? आपको हिस्ट्री के माइक्रो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं जो नोट्स दूंगा दोज आर माइक्रो नोट्स। तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपको माइक्रो नोट मिलेगा, उसमें ये दोनों के जो कंटेंट है वो लाए गए हैं उसमें। तो यू रीड दिस, अपना बुकलेट साइड में रखो, एक चैप्टर बुकलेट से पढ़ो, फिर यहाँ से पढ़ो, और आपको लगता है कि आपने कुछ ऐड करना है, आप ऐड कर सकते हो, स्टिकी नोट्स या फिर जो जगह छोड़ी है वहां पर। तो एक सिंगल सोर्स बनेगा आपका हिस्ट्री। उसी तरह से एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इसको यूज करो। एडिशन कुछ लगता है तो अपने नोट में डाल दो, आपका कस्टमाइज नोट बनेगा, और इसके अलावा कुछ मत करो। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मैंने आपको हर पीरियड के लिए बस एक बुक बोला, कंपनी रूल के लिए एक बुक, क्राउन रूल के लिए एक बुक, और इसका तो ऑप्शन भी दे दिया मैंने, पोस्ट इंडिपेंडेंस। मिनिमम सोर्सेज रखो, मिनिमम सोर्सेज, राइट? एंड देन कल्चर के लिए एक बुक, इनफ। क्लास स्टडी मटेरियल मिलेगा, एंड वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग करंट अफेयर्स मटेरियल फॉर यू हर मंथ का। मेकअप बनाया है, तो वी आर देख रहे हैं कि कितना उसको कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है? करंट में भी आता है कई कई बार, डोलावेरा साइट इज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो दैट इज हिस्ट्री ऑफ करंट। हिस्ट्री में कोई करंट नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन कभी कभी क्या, आई टेल यू, 250 साल हो गए हैं राजा राम मोहन रॉय का बर्थ होकर के, तो उनके ऊपर सवाल आ सकता है, तो करंट से जुड़े हुए चीजें, राइट? है ना? कभी कभी होता है कि सेलिब्रेशन होता है कोई हिस्टोरिकल इवेंट का, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज द करंट ऑफ हिस्ट्री, दैट विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। So this is what I want to discuss today.